স্টেডিয়ামে। আজকে দ্বিতীয় দিন, প্রথম ম্যাচ, একদিকে জেভিয়ার ব্রাদার্স, অন্যদিকে তাদের প্রতিপক্ষ হতে চলেছে মুখার্জি 11। দুই ক্যাপ্টেন এই মুহূর্তে প্রস্তুত, রাজ পাসওয়ান অ্যান্ড রোহিত চন্ডিগড়। তো আমরা টসে যাব, ম্যাচ অফিসিয়ালসকে অনুরোধ করব একটু এগিয়ে আসার জন্য এবং দিনের প্রথম ম্যাচের টসটা সেরে নিতে চাইব। আর একই সাথে অনুরোধ করব আমাদের মধ্যে প্রথম দিন থেকে, শুধুমাত্র প্রথম দিন থেকে না, এই টুর্নামেন্ট সাকসেসফুল করার পেছনে যে মানুষটির সব থেকে বেশি বড় অবদান রয়েছে, মিস্টার হেমন্ত বনিয়ালজি। প্লিজ স্যার আপ আ যাইয়ে। আর প্রতিদিনের মতন টসটা হবে মিস্টার হেমন্ত বনিয়ালজির উপস্থিতিতেই। তো অনেক বড় একটা ইভেন্ট, অনেক বড় একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, আমরা অপেক্ষা করছিলাম অনেক দিন ধরেই, কবে শুরু হবে দুর্গাপুর ধামাকা বিগ ব্যাশ। তো ওয়েস্ট বেঙ্গলের বুকে এত বড় টুর্নামেন্ট একটা এই প্রথমবারের জন্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং আমরা প্রত্যেকেই এক্সাইটেড ছিলাম। আর দিনের শুরু থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্যালারি কিন্তু ধীরে ধীরে ভরতে শুরু করেছে, মানুষের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে স্টেডিয়ামে। তো এই মুহূর্তে দুই ক্যাপ্টেনকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন মিস্টার হেমন্ত বনিয়ালজি এবং ক্লাব সমন্বয়ের পক্ষ থেকে মিস্টার কৌশিক রয়েছেন। আজকে মাঠে সব বড় বড় প্লেয়ার আসবে, সবাইকে অনুরোধ করছি সবাই যেন মাঠে চলে আসি। तो सर धमाका तो आप दे रहे हैं कमेंट्री बॉक्स से। कुणाल जी अब खेला होवे। हेड इज द कॉल एंड इट्स टेल, दैट मींस रोहित चंडीगढ़ यहाँ पे टॉस जीते हैं। तो क्या फैसला होगा यहाँ पे? पहले बैटिंग करेंगे हम। तो जिस तरह से यहाँ पे ग्राउंड को सजाया गया है और पिच कंडीशंस जिस तरह का है, क्या दिख रहा है, कितना रन यहाँ पे बन पाएगा? अभी ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है और एक दो दिन से मैच भी देख रहे हैं तो ज़्यादा स्कोर हो नहीं रहा है, जितना भी हो रहा है 50-60 के अंदर बन रहा है स्कोर और डिफेंड भी हो रहा है, तो इसी करके बैटिंग का फैसला किया। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द फर्स्ट मैच। রাজ, পুরো বাংলা জুড়ে খেলা চলছে, একটা লম্বা সিজন চলছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আবারও একটা বড় টুর্নামেন্ট এবং 10 লাখ 5 লাখের টুর্নামেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই প্রথমবার। তো অ্যাজ এ বাংলার খেলোয়াড় কি বলতে চাইবে এবং কি বলতে চাইবে? হেমন্ত বনিয়ালজি রয়েছেন সামনেই একদম, তো এত বড় একটা টুর্নামেন্ট, ক্লাব সমন্বয় দুর্গাপুর, যাদের এত বড় আয়োজন, সব মিলিয়ে শুনতে চাইবো একজন বাংলার খেলোয়াড়ের কাছ থেকে। সব থেকে আগে বলবো কি এই টুর্নামেন্টটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে, তো এটা খুব ভালো লাগছে। আর থ্যাংক ইউ বলবো হেমন্ত বনিয়ালজিকে, সরোজদাকে আর যা টুর্নামেন্ট অর্গানাইজিং কমিটি আছে, যে আমাদের বেঙ্গলে এত বড় টুর্নামেন্টটা করাচ্ছেন, খুব ভালো লাগছে। এত ভালো অ্যাটমসফিয়ার, গ্রাউন্ড খুব ভালো, খেলা হবে, এবার দেখি কি হয়, বাট আমরা চাইবো কি ফাইনাল যাব, খেলবো ভালো করে। তো নেক্সট ম্যাচের টসে যখন আসবো তখন জানতে চাইবো স্ট্র্যাটেজি, কারণ সবেমাত্র টিম প্রথম দিন শুরু করবে এখানে, কেমন মাঠ, কি অ্যাটমসফিয়ার এবং ফুল টস বলো আই থিঙ্ক ওয়েস্ট বেঙ্গলের বুকে প্রথমবার ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে, তো সেই জায়গায় ফুল টস বলের অভিজ্ঞতা, কোনো আগের কোনো অভিজ্ঞতা? হ্যাঁ অভিজ্ঞতা আছে, বাট খেলেছি, ভালো বল আছে। তো অল দ্য বেস্ট, দুই দলকেই অনেক শুভেচ্ছা। এখান থেকে আমরা সরাসরি চলে যাব কমেন্ট্রি বক্সে। ওভার টু कमेंट्री बॉक्स। और दोनों टीम से अनुरोध है कि आप लोगों को 5 मिनट के अंदर तैयार होकर, बैटर एंड फील्डर्स, ऑल फील्डर्स प्लीज आप लोग तैयार होकर 5 मिनट के अंदर ग्राउंड में आइए।
हेलो, धन्यवाद डीजे मास्टर। सुस्वागतम सुस्वागतम। आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल धमाका बिग बैश 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय दुर्गापुर क्लब समन्वय, प्रेजेंट बाय हेमंत बनियाल सर। प्रतियोगिता के स्पॉन्सर यूनाइटेड कोल करियर, जय मां चंडी ट्रांसपोर्ट, नीलकंठ माइनिंग, विदिशा निकेतन, ज्वेलरी गार्डन, आलम भाई चिकन, दुर्गापुर फ्रेट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, दे ग्रुप, रेडियो पार्टनर रेड एफएम 93.5, इवेंट पार्टनर यूफोरिया मैनेजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर 7070 स्पोर्ट्स, सम्माननीय तारिक भाई सैयद। कमेंट्री बॉक्स में आईपीएल की मखमली आवाज़ सम्माननीय कुणाल दाते सर और हमारे साथी चंदू शेटे सर, मैं खुद यासीन मर्चेंट, अलीबाग रायगढ़ महाराष्ट्र, और हमारे साथ है मुन्ना सर, अफाफुल सर और सुमोंतो सर। स्कोरर की भूमिका में मनोज और सुमन दास हमें यहाँ पे सहयोग करते हुए आप देख सकते हैं। ऑनलाइन स्कोरिंग का काम अर्णव दास और यश मोइते। 7070 लाइव कवरेज की पूरी टेक्निकल टीम हमसे जुड़ी हुई है। उसके साथ साथ हमारे डीजे मास्टर फिरोज, अंपायर की भूमिका में हमने कल भी देखा, आज भी देखेंगे, सम्माननीय शुभमंडल सर के साथी राजा मुखर्जी। टूर्नामेंट पूरी प्रतियोगिता 24 कैरेट फुल टॉस रही है और हमारे ये टेक्निकल जो टीम है उनके हेड विपुल पांडुलकर, संदीप कीर सर उर्फ डॉन, ऑपरेटर ओमकार सावंत, सिद्धांत कदम, एडिटर सचिन कांसे, स्कोरिंग यश मोइते, कैमरामैन ऋतुज कीर, सतीश, अश्विन, विशाल, जगदीश, अनिकेत, दीपेश और प्रकाश। इन सभी का मैं धमाका बिग बैश 2023 की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमसे जुड़े हैं चंदू शेटे सर। देखिए आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये पहला मैच जारी होता हुआ मुखर्जी 11 बनाम जेवीए ब्रदर्स कोलकाता। मुखर्जी 11 टीम ने, उनके कैप्टन ने टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का यहाँ पे फैसला किया है। कुछ ही देर में यहाँ पे अब मैच शुरू होने जा रहा है। देखिए दोनों भी सलामी बल्लेबाज मैदान में प्रवेश कर चुके हैं। समालोचन कक्ष की जानिब से दोनों भी टीमों के लिए शुभेच्छा जरूर होंगी। हम देख सकते हैं हमारी बाई और एक स्क्रीन बहुत ही खूबसूरती के साथ वहाँ पे एडजस्ट की है। खूबसूरत ये मैदान, पूरे मैदान में हरी हरी घास यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। मैच शुरू होने से पहले मैं एक यहाँ पे विशेष सूचना देना चाहता हूँ दोनों भी टीमों के लिए कि पहले 5 ओवर का जो खेल है
वो 25 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। अगर उससे ज़्यादा वक्त आप ज़ाया करते हो तो अंतिम ओवर में सर्कल के बाहर का एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर आपको लाना पड़ेगा और ये आपके लिए एक फ़ाइन होगा, पेनल्टी होगी। तो प्लीज़ इसका ख्याल रखें, ध्यान रखें। मुखर्जी 11 बनाम JVA ब्रदर्स कोलकाता। शुभ सकाल दुर्गापुर। दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023 में सभी क्रिकेट के चाहने वालों का तहे दिल से स्वागत है। और आज के इस धमाका दुर्गापुर धमाका बिग बैश का दूसरा दिन और दूसरे दिन का पहला मैच आपके सामने आता हुआ। एक तरफ मुखर्जी 11 और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो JVA ब्रदर्स। मुखर्जी 11 ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। बल्लेबाजी के लिए दीपू लेफ्टी राजस्थान के एक बड़े खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी तरफ रोहित चंडीगढ़िया पंजाब के खिलाड़ी है और गेंदबाजी के लिए आते हुए महाराष्ट्र के सांगली जिले के और बत्ती शिरारा तहसील से आने वाले और मांगले गांव से बिलोंग करने वाले विजय पावले गेंदबाजी के लिए भारत के एक सबसे रफ्तार भरे गेंदबाजों के रूप में भी जाने जाते हैं। मगर दूसरी तरफ पूरे राजस्थान में जिसके नाम के चर्चे सुनाई देते हैं दीपू लेफ्टी बल्लेबाजी के लिए आते हुए। दुर्गापुर धमाका बिग बैश अब खेला हो बे। विजय अच्छी गेंद, विजय की गेंद हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं मिला, सीधा फील्डर के हाथ में जाती हुई बिंदी गेंद से शुरुआत की है। विजय पावले ने खुद को साबित किया है। सांगली डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करने वाले विजय पावले पिछले 10 सालों में बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है उनका गेंदबाजी के बलबूते पर भारत में और भारत के बाहर जाके भी अपने गेंदबाजी के चर्चे उनके सुनाई देते हैं। वो है विजय पावले। दूसरी तरफ दीपू लेफ्टी जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आज वेस्ट बंगाल में। अच्छी गेंद फिर एक बार विजय पावले द्वारा, फिर इस बार भी लेन पर गेंद थी, रफ्तार ज्यादा थी और फिर एक बार हल्के हाथों से खेला, रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को खेला, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। लगातार 2 बिंदी गेंद आती हुई विजय पावले इनके द्वारा। हम है वेस्ट बंगाल की स्टील सिटी जो दामोदर नदी के किनारे बसा है दुर्गापुर, और दुर्गापुर में होने जा रही है एक बड़ी प्रतियोगिता। आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन, पहला मुकाबला। इस बार भी हिट करना चाहते थे फाइन लेग की दिशा में, इस गेंद को खेला दीपू के बल्ले से आता हुआ आज के दिन का पहला चौका। 4 4 4 4 4 रन। ये पहला चौका आता हुआ और इस चौके की सहायता से दीपू लेफ्टी ने भी अपना खाता खोला और अपने टीम का भी खाता खोला है। कल भी सर देखिए पहले ही मैच में अच्छा कमबैक करते हुए विजय पावले, और एक उच्च स्तर का क्रिकेट देखने मिलेगा सर हमें चारों दिन। कल के दिन भी अच्छे मुकाबले देखने मिले। पिरामीटर फ्रेंड्स JBL कांद्रा टीम क्वालिफाई रही, अनिर्बन इंजीनियरिंग की टीम भी क्वालिफाई हुई और अच्छा क्रिकेट कल के दिन भी देखने मिला। और आज भी
कुल मिलाकर 10 मुकाबले खेले जाएंगे और आज भी अच्छा क्रिकेट हमें देखने मिलेगा। एक तरफ अगर नॉर्थ इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ी और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईस्ट और वेस्ट इंडिया के खिलाड़ी। बड़ा हिट खेल दिया सामने की दिशा में और भेज दिया इस गेंद को सीमा रेखा पार। 4 रन। ओवर पिच गेंद थी और ओवर पिच गेंद यानी जन्मदिन का तोहफा उसे कबूल किया है बल्लेबाज दीपू लेप्टी ने और सीधे बल्ले से खेला था बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा ये चौका। कुछ गेंदें अच्छी आई थी विजय द्वारा मगर 2 गेंदें खराब थी। उस पर चौके लगाने में कामयाब रहे दीपू लेप्टी जो राजस्थान को बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है दीपू। फिर एक बार खराब गेंद थी, फुल टॉस थी, मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला। 1 रन मिलेगा, 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 9 रनों पर स्कोर। जबकि पहला ओवर विजय पाउले द्वारा देखने मिला और बिना कोई विकेट खोए 9 रन बने हैं इस वक्त टीम मुखर्जी 11 के। सर यहाँ पे 2 चौके एक ही ओवर में आए, उसके बावजूद मात्र 9 रन खर्च किए हैं। यानी ये मिला जुला ओवर रहा है, कभी बल्लेबाज हावी हुए तो कभी गेंदबाज भी यहाँ पे बल्लेबाजों के होश उड़ाने वाली गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है 9 रन स्कोर कार्ड पर। दीपू लेप्टी खेल रहे हैं 8 रन बनाकर, 9 रन बनाकर 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। जेवीए ब्रदर्स बनाम मुखर्जी 11 के बीच का ये मुकाबला पूरे भारतवर्ष की नजरें आज दुर्गापुर पर लगी है। इस प्रतियोगिता के जरिए शहीद भगत सिंह स्टेडियम और इस मार्ट पर एक बड़ी प्रतियोगिता हो रही है वेस्ट बंगाल में और टेनिस क्रिकेट विश्व के तारे सितारे इस मैदान पर खेलते हुए दिख रहे हैं आपको। 70 के द्वारा इस टूर्नामेंट का लाइव कवरेज भी काफ़ी बढ़िया लाइव कवरेज भी देख रहे हैं हम सर। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बने हैं बिना कोई विकेट खोए टीम मुखर्जी 11 के। और दूसरा ओवर लेके गेंदबाजी के लिए महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के पिंपरी चिंचवड़ को बिलोंग करने वाले गेंदबाज राजेश सोरटे आए हैं गेंदबाजी के लिए। देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स में अपना दमखम दिखा चुके हैं। रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में भी मैन ऑफ द सीरीज से नवाजे गए थे राजेश सोरटे। देखना होगा दीपू लेप्टी सामना करेंगे उनके गेंदबाजी का। दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023। अच्छी गेंद हल्के हाथों से कवर्स की दिशा में ढकलने का प्रयास रहा। 1 रन तो जरूर मिलेगा। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ सर 10 रनों पर। अच्छा क्रिकेट हमें पिछले कल भी देखा और आने वाले 2 दिनों में भी अच्छा क्रिकेट यहाँ देखने मिलेगा। और दर्शक कल भी देखा जाए तो सर पहले मैच से ही काफ़ी मात्रा में दर्शक थे। आज भी काफ़ी सारे दर्शक पहले मैच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने क्या ऑर्गेनाइज किया इस टूर्नामेंट को, हेमंत बनियाल सर, तारिफ सैयद सर, इनकी सराहना तो करनी होगी मगर दुर्गापुर क्लब समन्वय उनकी भी सराहना करनी होगी। पहले ही संस्करण में इस टूर्नामेंट को बड़े पैमाने पर पूरे भारतवर्ष को प्रस्तुत किया है दुर्गापुर के इस टूर्नामेंट ने। ओहो, इस बार टप्पा खाने के बाद गेंद स्विंग होती हुई और विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई। देखिए राजेश सोरटी की ये गेंद लेग कटर देखने मिली और बहुत बाहर गई और भाप नहीं पाए इस गेंद को रोहित चंडीगढ़िया। बड़े खिलाड़ी है नॉर्थ इंडिया के, बहुत सारे खिताब अपने नाम कर चुके हैं रोहित चंडीगढ़िया। आज वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर में देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होगी। इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद वहां से कट करते हुए मगर अंपायर हमारे तरफ मुड़ते हुए और वाइड बॉल करा दिया। इस वाइड से स्कोर 1 रन से आगे जाता हुआ 11 रनों पर। एक तरफ रोहित चंडीगढ़िया, दूसरी तरफ दीपू और गेंदबाजी के लिए राजेश सोरटे। काफी बढ़िया प्रतियोगिता। राजेश सोरटी की इस गेंद को रिवर्स खेलना चाहते थे। इस बार भी टप्पा खाने के बाद गेंद घूमी, कट हुई और सीधा बॉडी से टकराती हुई रोहित चंडीगढ़िया। समझ नहीं पा रहे पर राजेश सोरटे की गेंदों को और इसी के लिए जाने जाते हैं सर राजेश सोरटे। बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में खुद को साबित किया है और इसी कारण वेस्ट बंगाल में और दुर्गापुर में आ गए हैं राजेश सोरटे। रोहित चंडीगढ़िया भी कुछ कम नहीं है। ट्रैक्टर के रूप में मैन ऑफ द सीरीज उनको मिल चुका है, बहुत सारी बाइक्स जीती है मैन ऑफ द सीरीज के रूप में। पंजाब चंडीगढ़ से बिलोंग करने वाले रोहित चंडीगढ़िया बल्लेबाजी के लिए आगे निकलकर खेलना चाहते थे।
कामयाब नहीं रहे, मगर 1 रन तो जरूर मिलेगा। इस बार भी जैसे ही देखा फुटवर्क का कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को थोड़ा सा पीछे लिया, इसी कारण टाइमिंग नहीं बना सके और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 12 रनों पर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या कहेंगे गेंदबाजी के बारे में? बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी। पहले ओवर के मुकाबले में देखिए इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए हैं। वाइड के रूप में 1 रन भी ज़रूर आया था, मगर बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे बल्लेबाजों को महरूम किया है। और इस गेंदबाज की खासियत ये है कि गेंद टप्पा खाने के बाद बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकलती है। जी हाँ, देखिए इस मरतबा फिर से एक बार ढीले हाथों के साथ उस गेंद को धकेलने पर मजबूर कर दिया था, मगर दोनों भी खिलाड़ियों ने आपसी समझाइश और तालमेल यहाँ पे दिखाते हुए बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन किया है और 2 रन चुरा लिए हैं। 3 रन यहाँ पे चुरा लिए हैं और इन 3 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 15 रन। 15 रन बन चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी जरूर हो रही, मगर रन लेने की कोशिश कामयाब रही। और जब बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे तो इस तरह से आप रन निकाल सकते हैं और वही किया, 3 रन निकाले। एक तरफ अगर देखा जाए तो दीपू लेफ्टी, दूसरी तरफ रोहित चंडीगढ़िया बल्लेबाजी के लिए। जेवीए ब्रदर्स आज जर्सी स्पॉन्सर है, ब्लू ओनेक्स। मुखर्जी 11 आई टेक उनके जर्सी स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के, उनकी भी हम सराहना करना चाहेंगे। राजेश सोरडे रोहित चंडीगढ़िया के लिए बाहर निकल कर खेले और एक बड़ा धमाका, गेंद को भेज दिया दूर 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 दूर, बहुत दूर, 6 रनों के लिए। बाद 21 रन बन चुके हैं, बिना कोई विकेट खोए 21 रन बन चुके हैं टीम मुखर्जी 11 के। अच्छी शुरुआत यहां देखने मिल रही है, मगर पहले 2 ओवर में कुछ अच्छी गेंदें भी देखने मिली। राजेश सोरटे 12 रन इस ओवर में दिए, विकेट नहीं चटका पाए, मगर 12 रन जरूर दिए उन्होंने। दीपू खेल रहे 13 रन पर, रोहित खेल रहे 7 रनों पर। अभी भी 4 ओवर आना शेष है, देखना होगा आने वाले 4 ओवर में किस तरह से गेंदबाजी और बल्लेबाजी हमें देखने मिलती है। मुकाबला चलता हुआ जेवीए ब्रदर्स बनाम मुखर्जी 11 के बीच। हर एक टीम के लिए जर्सी स्पॉन्सर है, जेवीए ब्रदर्स के लिए ब्लू ओनेक्स और मुखर्जी 11 के लिए आई टेक एक जर्सी स्पॉन्सर है। काफी बढ़िया। विजय पावले फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आते हुए। विजय पावले भारत के सबसे रफ्तार भरे गेंदबाज के रूप में भी जाने जाते हैं विजय पावले। और दूसरी तरफ पूरे राजस्थान में जिस बल्लेबाज की चर्चा है, नाम है दीपू लेफ्टी। और दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया में जिसका सिक्का चलता है, नाम है रोहित चंडीगढ़िया। देखना होगा पूरे भारत से सभी जाने माने खिलाड़ी आज दुर्गापुर में। विजय की ये स्लोअर बाउंसर के धीमी गति से बाउंस भी किया था, मगर अंपायर ने व्हाइट बॉल करार दिया। स्कोर 1 रन से आगे जाता हुआ 22 रनों पर विजय पावले। 22 रन बन चुके हैं। जेवीए ब्रदर्स बनाम मुखर्जी 11 के बीच का यह मुकाबला। 4 दिन की यह प्रतियोगिता। कुल मिलाकर 5 मुकाबले खेले गए और आज कुल मिलाकर 10 मुकाबले इस टूर्नामेंट में खेले जाएंगे काफी मात्रा में। और दुर्गापुर के जो क्रिकेट के चाहने वाले काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस टूर्नामेंट का। हेमंत बनियाल सर और पूरा दुर्गापुर क्लब समन्वय उनकी सराहना करनी होगी। विजय पावले रफ्तार भरी गेंद की दिशा में खेलने का प्रयास और कामयाब रहे। इस गेंद को भी भेज दिया 4 रनों के लिए। सभी खिलाड़ियों से विनती है, आप आर्ग्यू ना करें। आपके पास एक रिव्यू है, वो आप कभी भी ले सकते हैं। और दीपू के बल्ले से आता हुआ ये चौका, 4 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ 26 रनों पर, बिना कोई विकेट खोए 26 रन मुखर्जी 11 के लिए। दीपू
इस बार भी रफ्तार गहरी गेंद, इस गेंद को भी भेज दिया दूर 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 दूर, बहुत दूर। छक्के के लिए 6 रन। सर इस बार भी थोड़ी सी उछाल ज्यादा थी और फाइन लेग की दिशा में 6 रनों के लिए भेज दिया। तीसरा ओवर चलता हुआ 32 रन बने हैं। दीपू लेप्टी पहले ही थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर सफल हो गए थे और जैसे ही गेंद को देखा कि लेग स्टंप के बाहर है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और बैकफुट पर हुक किया था और उन्हें यहाँ पे 6 रन हासिल हुए हैं। दीपू काफी अच्छी बल्लेबाजी अब तक दीपू ने की है। 30 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सिर्फ 10 गेंदों में। विजय पावले अब तक 20 रन दे चुके हैं, मगर काफी अच्छे गेंदबाज है, वेरिएशन करना जानते हैं और इसीलिए बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में शिरकत भी करते हुए नजर आते हैं विजय पावले। पूरे भारत से सभी बड़े बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में जरूर दिखेंगे आपको। स्लोवर वन धीमी गति से की थी, पॉइंट की दिशा में इस गेंद को खेला और इस गेंद भी जाती हुई सीमा रेखा पार। 4 रन। फिर एक बार एक अच्छा स्ट्रोक देखने मिला, नियंत्रण था इस स्ट्रोक में और आखिरी वक्त पॉइंट की दिशा में इस गेंद को खेला, गैप में गया स्ट्रोक और 4 रन हासिल किए। रन तो बन रहे और तेजी से बन रहे, बिना कोई विकेट खोए 36 रन बन चुके। 36 विदाउट लॉस। टीम मुखर्जी 11 अच्छी शुरुआत हो चुकी है। दीपू लेप्टी 27 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी भी रोहित चंडीगढ़िया का बल्ला थोड़ा सा शांत ही है, देखना होगा आगे क्या होगा। इस बार भी बड़ा हिट खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, दूर 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 दूर, बहुत दूर, सिक्सर। बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा। 42 रन बन चुके हैं बिना कोई विकेट खोए। दीपू लेप्टी के नाम के चर्चे पूरे वेस्ट बंगाल में और पूरे भारत में आज होंगे, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं सर। शानदार बल्लेबाजी जिसका कोई जवाब नहीं है विजय पावले के पास, क्योंकि इस ओवर में लगातार 4-6 4 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौके हमें देखने को मिले हैं। कमाल की बल्लेबाजी, जबरदस्त सुपरस्टार की तरह यहाँ पे निखरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दीपू लेप्टी काफी बढ़िया बल्लेबाजी आज वेस्ट बंगाल के अंदर कर रहे हैं। उनका साथ देते हुए रोहित चंडीगढ़िया अच्छी शुरुआत। कोई भी टीम चाहेगी सर इस तरह से स्टार्ट हो, 6 ओवर का मुकाबला है, ऐसा स्टार्ट अगर हुआ तो 90 और 100 के दरमियान भी स्कोर जा सकता है, मगर कमबैक करना होगा। टीम जेवी ब्रदर्स को अच्छी टीम है और अच्छे गेंदबाज इस टीम में भी शामिल है, तो वही करना चाहेंगे, कमबैक करना चाहेंगे। आज दिन के मुकाबले कल रात में थोड़ी सी स्कोर कम हो रहा था, मगर आज दिन के मुकाबले में एक अच्छी शुरुआत हुई है और आज पूरे दिन एक अच्छा क्रिकेट हमें देखने मिलेगा। और सर विजय पावले इस गेंदबाज के ऊपर सर यहाँ पे शायद रिव्यू लिया गया है और तीसरे अंपायर की आंख यहाँ पे देख रही है कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ था और नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने। और फ्री हिट देखना होगा, इस फ्री हिट का फायदा कैसे उठाते हैं दीपू लेप्टी, जिनके नाम के चर्चे। 43 रन बने हैं, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर है विजय पावले। इनके द्वारा थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए, मगर देखना होगा। थर्ड अंपायर का निर्णय आ चुका है। तीसरे अंपायर की तरफ से ये निर्णय आ चुका है
मैं फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि फिर से एक बार यहां से जल्द मैच शुरू होना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ी देर यहां पे खेल रुका हुआ है, मगर सर विजय पाउले जैसे गेंदबाज के ऊपर इतना हावी होना इतना आसान नहीं है। बहुत ही शानदार गेंदबाज है, ज़बरदस्त गेंदबाज है, पूरे भारतवर्ष में इस गेंदबाज के चर्चे हैं। इस गेंदबाज ने हर टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब गेंदबाजी की है, मगर आज दीपू लेप्टी उनके ऊपर हावी होते हुए दिखाई दिए। पहली गेंद हालांकि वाइड के रूप में आई थी, उसके बाद चौका छक्का चौका और छक्का यानी बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे डील की है दीपू लेप्टी ने। मैच यहाँ से जल्द शुरू होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बार बार यहाँ पे हमें मैसेज आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की जानिब से, और ये मैसेज मैं आपकी तरफ फॉरवर्ड कर रहा हूँ। प्लीज़ इसका लिहाज रखें। दीपू लेप्टी मात्र 12 गेंदों का सामना किया है इस बल्लेबाज ने, और 33 रन बनाकर स्ट्राइकिंग एंड पर खेल रहे हैं, जबकि उनके साथी बल्लेबाज रोहित चंदगड़िया ने मात्र 4 गेंदों का सामना किया है और 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। दीपू लेप्टी फिर एक बार बल्लेबाजी के लिए, विजय पाउले गेंदबाजी के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। यह दीपू ने बड़े बड़े स्ट्रोक विजय पाउले के खिलाफ अब तक लगाया है। उन्होंने देखना होगा इस फ्री हिट का फायदा किस तरह से उठाते हैं। विजय निकले गेंदबाजी के लिए, जड़ में करना चाहते थे, इस गेंद को भी एक अच्छा स्ट्रोक में तब्दील किया, गेंद को रुकाने में कामयाब रहे और 2 रन इस दरमियान चुरा लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर आगे जाता हुआ 45 रनों पर। दीपू लेप्टी काफी बढ़िया प्रदर्शन अब तक अपने बल्लेबाजी के बलबूते पर 35 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिर्फ 13 गेंदों का सामना किया है, 45 पर पहुंचा दिया स्कोर को। एक तरफ दीपू और दूसरी तरफ रोहित चंडीगढ़िया। दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023। इस बार भी बड़ा हिट लगाना चाहते थे, मगर चकमा खा गए। सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई। देखते ही देखते 3 ओवर एक गेंद। हाँ, विजय पाउले फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आएंगे। 45 रन बन चुके हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी और काफी अच्छी शुरुआत भी हो चुकी है। देखना होगा किस तरह से आने वाले ओवर में भी बल्लेबाजी करते हैं ये बल्लेबाज या गेंदबाज कमबैक करेंगे, देखना होगा। विजय पाउले इस बार भी बड़ा हिट लगा दिया और गेंद को भेज दिया सीमा रेशा पार। 4 रन। एक महंगा और यहाँ आता हुआ यासीन सर। 49 रन बने बिना कोई विकेट खोए। अच्छी शुरुआत मुखर्जी 11 के लिए। रोहित चंडीगढ़िया 7 रनों पर और दीपू लेप्टी 39 रन 15 गेंदों में बना चुके हैं। 3 ओवर इस पहले पारी के हो चुके हैं और आने वाले 3 ओवर में क्या होगा सुनने के लिए महाराष्ट्र अलीबाग के एक बेहतरीन कमेंटेटर यासीन मर्चेंट सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं यासीन मर्चेंट तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार शहीद आजम भगत सिंह स्टेडियम पर, जहां पे पहले 3 ओवर में 49 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दीपू लेप्टी खेल रहे हैं 39 रन बनाकर, मात्र 15 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। रोहित चंदगड़िया खेल रहे हैं 4 गेंदों में 7 रन बनाकर। इस मरतबा स्ट्राइकिंग एंड कर रोहित,
जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी नए गेंदबाज विजय गढ़वाल के ऊपर। राइट आर्म राउंड विकेट। जी हां, फिर से एक बार ओवर पिच गेंद, सामने पड़ी हुई गेंद थी, उसे उछाल कर खेला है बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा ये छक्का आता हुआ। ओवर पिच गेंद थी पहली गेंद। विजय गढ़वाली काफी अच्छे गेंदबाज जरूर रहे हैं, मगर पहली गेंद ओवर पिच थी और सीधा बल्ले से खेल दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और देखते देखते 55 रन बन चुके सर। 55 रन और पहले विकेट के लिए ये साझेदारी यहाँ पे पनप रही है। दोनों भी बल्लेबाज अब सेट हो चुके हैं। जी हाँ, फिर से एक बार उठाया है जरूर, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए और ये पहला झटका लगता हुआ बल्लेबाज रोहित के रूप में। पचपन रन पर यह पहला झटका लगता हुआ रोहित के रूप में। हालांकि हार्ड लेन गेंद जरूर थी और उसे उछाल कर खेलने की कोशिश की, मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए और इसी वजह से अपना कीमती विकेट रोहित को यहां पे गंवाना पड़ा। देखिए, विजय गढ़वाली जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दीपू लेप्टी जो राजस्थान को बिलोंग करते हैं और नए बल्लेबाज, ये ऑल इंडिया लेवल की टूर्नामेंट है सर, नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। सुरेंद्र जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, भारत के हर एक स्टेट से यहाँ खिलाड़ी दुर्गापुर में दाखिल हुए हैं अपने खेल का प्रदर्शन दिखाने के लिए। सुरेंद्र जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं बल्लेबाजी के लिए। अब यहाँ पे गेंदबाजों को सोचना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। इस मर्तबा फिर से एक बार स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का प्रयास था बल्लेबाज सुरेंद्र का, मगर गेंद और बल्ले की सही अंदाज में यहाँ पे मुलाकात नहीं हुई। गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई दिखाई दी। बहुत देर के बाद यहाँ पे बिंदी गेंद हम यहाँ पे देख रहे हैं। कमाल की बल्लेबाजी, शानदार, अफलातुन, अप्रतिम ऐसी बल्लेबाजी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ, इस मर्तबा लोअर फुल टॉस गेंद, उसे उछाल कर खेलने की कोशिश, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में फिर से एक बार पकड़े गए। इसी ओवर में फिर से एक बार बल्लेबाजी करने वाली टीम को लगता हुआ ये दूसरा झटका। হ্যালো 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 সুমন্তদা একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করবে, যখন যে প্লেয়ার ব্যাট করবে শুধু স্টেটটা বলে দেবে, সেই প্লেয়ার কোথা থেকে এসছে, স্টেটটা, ঠিক আছে, কোন স্টেট থেকে এসছে সেটা বলে দেবে। আর জার্সি স্পন্সরটা বারবার অ্যানাউন্সমেন্ট করবে, জার্সি স্পন্সরটা কোন প্লেয়ার কোন স্টেট থেকে এসছে সেটা একবার বলে দেবে, তাহলে আমাদের দর্শকরা জানতে পারবে কোথা থেকে কে এসছে। साहिल जो हरियाणा से आने वाले बल्लेबाज, बल्लेबाजी के लिए हर एक टीम के लिए जर्सी स्पॉन्सर भी अलग अलग जर्सी स्पॉन्सर भी है। और विजय गढ़वाली ने इस ओवर का तीसरा विकेट हासिल किया। सर देखिए, उन्होंने शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, पहले गेंद पर 6 आया था, उसके बाद जिस तरह से गेंदबाजी की है, क्यों विजय गढ़वाली के नाम के चर्चे पूरे भारत में होते हैं, यहां दिखाते हुए 3 विकेट लिए बोल्ड आउट के रूप में वापस लौटना होगा साहिल को। यासीन सर, विजय गढ़वाली ने अपने टीम को यहाँ पे वापसी दिलाई है।
क्योंकि पहले 3 ओवर के मुकाबले में इस ओवर में देखिए बहुत ही किफायती गेंदबाजी, विकेट टेकिंग गेंदबाजी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि विजय गढ़वाली का छक्के से यहाँ पे स्वागत किया था बल्लेबाजों ने, मगर उसके बाद जिस अंदाज के साथ विजय गढ़वाली ने अपनी गेंदबाजी को यहाँ पे प्रदर्शित किया है, सही मायनों में सराहना करनी होगी। सर जर्सी स्पॉन्सर है हर एक टीम के लिए इस टूर्नामेंट में। जेवीए ब्रदर्स के लिए ब्लू ओनेक्स और मुखर्जी 11 के लिए आई टेक ये जर्सी स्पॉन्सर है। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आते हुए रविंद्र जो पंजाब से बिलोंग करते हैं। यासीन सर, लास्ट 4 गेंदों में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 3 अपने ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को खोया है। ऊपरी क्रम के बल्लेबाज ओहो हैट्रिक की दहलीज पर भी थे, मगर यहाँ पे हैट्रिक को मिस करते हुए, मगर क्या कमाल की ये शानदार अंतिम गेंद थी। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर करने की कोशिश काफी हद तक सफल रहे और देखते देखते यहाँ पे इस लाजवाब ओवर की समाप्ति। सर पहले गेंद पर छक्का जड़ा था, उसके बाद लगातार 5 बिंदी गेंदें की और 3 विकेट हासिल किए। विजय गढ़वाली ने सराहना करनी होगी जिस तरह से गेंदबाजी की है। अभी अभी जो प्रेक्षक, जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, अभी अभी YouTube जिन्होंने खोला है, उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, यह मैच मुखर्जी 11 बनाम जेवीए ब्रदर्स इन दोनों टीमों के बीच जारी है। मुखर्जी 11 ने सबसे पहले टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का यहाँ पे फैसला उनके कैप्टन का दीपक लेप्टी ने काफी प्रभावित किया है। एक लंबी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ उनके साथी बल्लेबाज रविंद्र सिंह अभी अभी मैदान पर नमूदार हो चुके हैं। 4 ओवर की यहां पे समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 55 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद यहां पे अब बल्लेबाजों को थोड़ा सा सोचना होगा। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर अभी भी आने बाकी है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं आशीष अगरकर। मलिंगा नाम से भी इन्हें पहचाना जाता है क्योंकि ये दिल्ली से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन लेग कटर, स्लोवर वन, परफेक्ट यॉर्कर, बाउंसर, स्लो बाउंसर, इस तरह की गेंदबाजी करने के लिए माहिर। अपना निजी पहला और हमेशा की तरह राइट आर्म राउंड विकेट यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए हम देख सकते हैं बॉलिंग मार पर तैयार है। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है दीपू लेप्टी, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अब तक की है। जी हाँ, खड़े खड़े, हालांकि बिल्कुल फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था, उससे बॉलर के सर के ऊपर से खेला था। लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद थे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार थ्रो और यहाँ पे डेंजर जोन में बल्लेबाज। अंपायर जी की तरफ से इशारा, तीसरे अंपायर के लिए DRS यहां पे लिया है। अब देखा जाएगा तीसरे अंपायर यहां पे टटोलते हुए कि एक्चुअली वहां पे मैदान में क्या हुआ था, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में जो फील्डर फील्डिंग कर रहे हैं उनकी तारीफ बनती है। कमाल की फील्डिंग, चुस्त और फुर्तीले वहां पे नजर आए। जैसे ही गेंद उन तक आ रही थी, उन्होंने उस गेंद का पीछा किया और बहुत ही खूबसूरती के साथ स्ट्रॉन्ग आर्म उनके नजर आए। कमाल का थ्रो था और विकेट कीपर की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा, जिस अंदाज के साथ उन्होंने स्टंप को बिखेर दिया था। और इसी वजह से यहाँ पे मैदान में जो अंपायर है उनके दिल में थोड़ी सी शक और शुबा यहाँ पे दिखाई दी। उन्होंने तीसरे अंपायर की यहाँ पे मदद ली है। तीसरे अंपायर यहाँ पे टटोलते हुए, चेक करते हुए किसी भी टीम के ऊपर किसी भी तरह का अन्याय ना हो, इस वजह से टेक्नोलॉजी का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है और ये करना भी चाहिए। 55 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। दीपू लेप्टी के बल्ले से अब तक हमें 2 छक्के। सर सॉरी टू स्टॉप यू, 5 मिनट के अंदर ये इनिंग्स खत्म करना है, तो फिलहाल आप फील्डिंग साइड जो है थोड़ा ध्यान में रखिए ये बात।
पहले ही आप लोगों को बोला गया था कि 30 मिनट्स के अंदर आपको इनिंग्स खत्म करना है, तो प्लीज टाइम बाउंडेशन जो है वो अपने ध्यान में रखिए। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स सर। धन्यवाद। तीसरे अंपायर अभी भी यहाँ पे टटोल रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या वहाँ पे बल्लेबाज आउट है या नॉट आउट है। देखिए हमारे स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं कि किस तरह से विकेट कीपर ने चुस्ती और फुर्ती दिखाकर विकेटों के ऊपर सीधा निशाना लगाया था और अंपायर को मजबूर किया था। और इसी के साथ अंपायर जी का इशारा यहाँ पे रनआउट के रूप में, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। थोड़ी सी जल्दबाजी यहाँ पे दिखाई दी। दीपक लेप्टी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर अपना कीमती विकेट यहाँ पे दीपक ने खोया है। दीपक ने अपने टीम के लिए 40 रनों का योगदान दिया। आशीष आगरकर गेंदबाजी के मार्ग पर, पहली गेंद पर 1 रन उन्होंने यहाँ पे खर्च किया है, मगर रनआउट के रूप में एक सेट बल्लेबाज को चलता किया है। देखिए विकेट कैसा भी हो, विकेट की कीमत तो उतनी ही होती है। रनों की संख्या यहाँ से बहुत ही ऊंचाई की तरफ मार्गक्रमण कर रही थी, मगर उसे कुछ हद तक रोक लगाया इसके पहले विजय गढ़वाली ने, और अब यहाँ पे आशीष आगरकर राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, स्लो ओवर 1 गेंद, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर पिच होने वाली गेंद, उसे खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद हवा में रही, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक आसान सा कैच, और बैक टू बैक और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएगा। इस खेल में वक्त बदलने को वक्त नहीं लगता सर, यही हुआ है। 3 ओवर में 49 बन चुके थे, उसके बाद अगर देखा जाए तो विकेट 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 और विकेट आ गए, और अभी भी प्रयास करना होगा, एक बड़ा लक्ष्य सामने रखना होगा। वापस लौट चुके नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर, नए बल्लेबाज विशाल जो राजस्थान से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है, देखना होगा किस तरह से, और जिस तरह से जिन्हें टेनिस क्रिकेट विश्व के मलिंगा के रूप में जाने जाते हैं आगरकर। और एक अच्छी गेंद आशीष आगरकर के द्वारा, टेनिस क्रिकेट विश्व के में मलिंगा के नाम से जाने जाते हैं दिल्ली के ये खिलाड़ी, उनके हेयर स्टाइल के भी चर्चे होते हैं सर। आगरकर ने कमाल कर दिया है, इसी का नाम क्रिकेट है। देखिए चंदू सर, ऐसा लग रहा था, हम सभी ने प्रेडिक्ट किया था कि ये रनों की संख्या तकरीबन 90 या 100 तक हम देख रहे थे। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में उछाल कर खेला है, पूरी तरीके से मिस टाइम शॉट, गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया, शॉट कवर की दिशा में एक आसान सा कैच, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे। धन्यवाद डीजे। सर पहले 3 ओवर में रन बने थे 49, और 18 गेंदों में एक भी विकेट नहीं आया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो 9 गेंदों में 6 विकेट आए हैं। क्या क्रिकेट खेला जा रहा है, और इसी तरह से एक उच्च आला दर्जे का क्रिकेट हमें आज पूरे दिन में देखने मिलेगा। देखो दुर्गापुर धमाका बिग बैश, देखते रहिए। इस बीच एंजल कोलकाता और शेर बंगाल सोम्या 11 SCA, इन दोनों भी टीमों से मेरी गुजारिश है कि टॉस करने के लिए आप जल्द से जल्द तशरीफ लाएं। आई रिपीट वंस अगेन, एंजल कोलकाता बनाम शेर बंगाल सोम्या 11 SCA, दोनों भी टीम के कैप्टन जल्द से जल्द हमसे जुड़े।
ओहो, आशीष आगरकर फिर से एक बार अपने गेंदबाजी के गुण यहाँ पे दिखाते हुए, क्या कमाल की गेंदबाजी की है। इसके पहले तो विजय गढ़वाली ने प्रभावित किया था। विजय ने अपने निजी पहले ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए थे और आशीष आगरकर यहाँ पे आग की तरह बरसते हुए। मैंने इसके पहले आपको याद दिलाया था कि ये लाजवाब लेग कटर गेंदबाज है और उनके गेंदबाजी के खास जो एक वैशिष्ट्य हमेशा देखने को मिले हैं, हर एक गेंद अलग अलग तरह की वो करते हैं, वर्सटाइल गेंदबाजी करने के लिए माहिर है। और देखिए इस ओवर की देखते देखते समाप्ति हो चुकी है। सिर्फ 1 रन दिया, 2 विकेट भी हासिल कर लिए आशीष आगरकर ने। और क्यों पूरे भारत में काफी लोकप्रिय है आशीष आगरकर इस मैच में दिखाते हुए। ये आशीष आगरकर जिस तरह से गेंदबाजी कर, देखिए 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, रन बने हैं 56, 56 बने हैं, 6 विकेट गवा दिए हैं और अभी भी एक आखिरी ओवर चाहिए। आशीष आगरकर, राजू मुखिया और विजय गढ़वाली, एक ऐसे ये तीनों की गेंदबाजी की शैली है लगभग एक जैसी ही है। लास्ट 12 गेंदों में मात्र 7 रन आए हैं और 5 विकेट गवाए थे बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। मुखर्जी 11, जी हाँ, इसमें दबा बैकफुट पर जाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे टैप किया था डी पॉइंट की दिशा में। जब तक उस गेंद को वहां के फील्डर फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने आसानी के साथ यहां पे 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या आगे सरक रही है। 58 रन ऑन अ स्कोर कार्ड। अंतिम ओवर प्रगति पर। अंतिम ओवर लेके आए हैं विजय गढ़वाली, अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से 6ठा ओवर। विजय पावले ने तीसरे ओवर में 28 रन खर्च किए थे, मगर उनके साथी संग सहकारी गेंदबाजों ने शानदार अपने टीम के लिए वापसी दिलाई है। जी हां, इसमें दबा ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को अजीबो गरीब अंदाज के साथ खेलने का प्रयास था। गेंद ने बल्ले का टॉप एज लिया था, गेंद कहीं और निकल गई थी लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां के बिल्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते, फील्ड करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार चतुराई के साथ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए 2 रन चुरा लिए। जिस तरह से कोई आंखों से काजल चुराता है, उस तरह से यहाँ पे रन चुराए जा रहे हैं। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 60 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस प्रतियोगिता का ये दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये पहला मैच। फिर से एक बार ओवर पिच बनाकर उसे खेलने की कोशिश जरूर की है, मगर गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगी थी और कारपेट के सहारे कारपेट को चाटती हुई डीप मिड विकेट की दिशा में। हालांकि बहुत ही बढ़िया फील्डिंग होने के बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार यहाँ पे अपने चतुराई भरी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन किया और 2 रन जुटा लिए हैं। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 62 रन। अजीब और गरीब ये खेल है। इस खेल में कब क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, इसके बारे में बताना संभव के करीब माना गया है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला खेल और राजनीति की तरह रंग दिखाने वाला ये खेल। पहले 3 ओवर में देखिए, पहले ओवर में 9 रन, दूसरे ओवर में 12 रन और तीसरे ओवर में 28 रन जुड़े थे। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कम से कम 90 या 100 रन यहाँ पे जरूर होंगे पहले बल्लेबाजी करते हुए मुखर्जी 11। मगर इस मैदान पर, इस मैच में इस क्रिकेट ने रंग बदला और अब यहाँ पे 1-1, 2-2 रन के लिए मेहनत और मशक्कत करनी पड़ रही है। थोड़ी देर के लिए फिर से एक बार यहाँ पे खेल को रोका गया है, मगर मैं बताना चाहूँगा अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। पहली 3 गेंदों में 6 रन खर्च किए हैं विजय गढ़वाली ने। जी हाँ, यहाँ पे रिव्यू लिया गया है DRS अंपायर के जरिए से। 62 रन स्कोर कार्ड पर 6 विकेटों के नुकसान पर पहले सत्र का खेल यहाँ पे जारी है। हमसे जुड़े हुए चंदू शेट्टे सर और उसके साथ साथ कुणाल दाते सर, मुन्ना सर, एक बहुत ही खूबसूरत ये प्रतियोगिता। और उसके साथ साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे हेमंत बनियाल सर, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को प्रेजेंट किया है, और उनके साथ ही
तारिब भाई सैयद सर की जानिब से काफ़ी खूबसूरत। और चंदू शेट्टी सर ने कहा था कि एक लाजवाब ये टूर्नामेंट और प्रतियोगिता हम देख रहे हैं, मगर मैं तो ये कहूँगा कि इन दोनों ने, हेमंत सर और तारिब भाई ने, यहाँ पे हमारे सामने एक उदाहरण पेश किया है कि किस तरह से टूर्नामेंट होना चाहिए। मैं तो कहूँगा इस खेला को भालो भालो खूब भालो। सिक्सटी 62 रन स्कोर कार्ड पर हम देख रहे हैं, मगर इस गेंद के ऊपर कितने रन आएंगे, 1 रन आएगा या 2 रन का इशारा आएगा, इसी के इंतजार में हम सब हैं। आज इस प्रतियोगिता का ये दूसरे दिन का ये पहला मैच जारी है। मुखर्जी 11 बनाम जेवीए ब्रदर्स कोलकाता। रविंद्रा खेल रहे हैं 4 गेंदों में 6 रन बनाकर, जबकि सनी खेल रहे हैं, जी हाँ, 1 रन शॉट का यहाँ पे इशारा आता हुआ अंपायर जी की जानिब से। 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 61 रन, 61 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अंतिम 3 गेंदें पहले सत्र की। अंतिम ओवर के लिए हम देख सकते हैं गेंदबाजी के मार्ग पर विजय गढ़वाली, राइट आर्म राउंड विकेट। आहा, हवा में खेला हुआ ये स्ट्रोक, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम। एजाज कुरैशी लॉन्ग ऑफ की दिशा में बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग करते हुए नजर आए, और इसी के साथ ये 7वां छक्का लगता हुआ मुखर्जी 11 को। सर किस तरह से कमबैक किया है इस टीम ने। ऐसा लग रहा था कि 100 रन बन जाएंगे, उसके बाद जो गेंदबाजी रही है सभी गेंदबाजों ने, विजय गढ़वाली, आशीष आगरकर, जो धीमी गति से लेग कटर करते हैं, अंदर की तरफ भी गेंदे लाते हैं, और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की और विकेट जो हासिल किए, ऐसा लग रहा था 100 तक स्कोर जाएगा, उससे नियंत्रित रखा है और कंट्रोल भी किया है। देखना होगा, अभी भी 2 गेंदे शेष है। सर ये जो क्रिकेट का खेल है वो 11 खिलाड़ियों का खेल है। इसमें किसी एक की गलती की वजह से मैच का पलड़ा कभी भी भारी हो सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। देखिए यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि किसी एक खिलाड़ी ने अगर कोई गलती की तो दूसरे ने अगर उसे बैक किया, उसकी गलती को यहाँ पे दुरुस्त किया, तो ज़रूर मैच में वापसी हो सकती है। एक अकेला अगर थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। यहाँ पे हाथ बढ़ाया है उनके साथियों ने। फिर से एक बार गेंद हवा में और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में एक आसान सा कैच, और ये 5 विकेट विजय गढ़वाली के नाम। ये 5वां विकेट। भैया एक बार स्टेज भी, भैया स्टेज भी, कौशिक एक बार स्टेज भी। 5 विकेट्स इन हॉल। क्या कमाल की गेंदबाजी की है विजय गढ़वाली ने, लाजवाब। चलिए दोस्तों, मैं फिर से एक बार एंजल कोलकाता के कैप्टन और शेर बंगाल सोम्या 11 SCA के कैप्टन से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको जल्द से जल्द टॉस करने के लिए आना है। पहले 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 61 रन ऑन स्कोर कार्ड। जीतने के लिए 62 रनों की ज़रूरत। ये 62 रन किस तरह से बनेंगे, इसके बारे में ब्यौरा देने के लिए माइक्रोफोन पर मैं दावत देना चाहूँगा मेरे काबिल दोस्त कुणाल दाते सर, और उनके साथ होंगे मुन्ना सर। धन्यवाद।
दुर्गापुर धमाका बिग बैश ऑर्गेनाइज्ड बाय दुर्गापुर क्लब सबने, प्रेजेंटेड बाय हेमंत बनियाल सर। स्वागत है आप सभी का इस दुर्गापुर धमाका बिग बैश में। दुर्गापुर धमाका बिग बैश ग्रुप बी का मैच, ग्रुप बी का ये पहला मैच। दो बड़ी टीम आमने सामने है, मुखर्जी 11 और JBA बड़ौदा कोलकाता। अच्छा मुकाबला होगा मुन्ना, जबकि टारगेट यहाँ पर सेट किया है 62 रन, 62 रनों का JBA ब्रदर्स कोलकाता के सामने। मुखर्जी 11 इस टीम ने। क्या गेंदबाजी रही पहले सत्र में विजय गढ़वाली द्वारा। पहला फाइपर यहाँ पर कंप्लीट किया उन्होंने, 2 ओवर महज 11 रन, 5 विकेट उनके खाते में। अच्छी गेंदबाजी विजय गढ़वाली द्वारा। धमाका बिग बैश जब जब भी होता है तब तब ये उभर कर आते हैं गेंदबाज विजय गढ़वाली। दिल्ली धमाका बिग बैश में बेहतरीन गेंदबाजी की थी विजय गढ़वाली ने। अब यहाँ पर दुर्गापुर धमाका बिग बैश में बिल्कुल उसी अंदाज में गेंदबाजी करते नजर आए विजय गढ़वाली। शुभ शकौल दुर्गापुर। बिल्कुल कुणाल सर आपने सही कहा, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप बंगाल पहली बार आए हैं और बहुत कुछ बंगाली लैंग्वेज में आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमूमन अक्सर इतना जल्दी कोई कोऑपरेट नहीं कर पाते, इतना जल्दी इस माहौल में ढल नहीं पाते हैं, लेकिन 1-2 दिनों में जिस तरीके से आपने ढला है, मुझे लगता है कि 10 दिन रह जाएंगे तो 80% तो कवर हो जाएगा। जी हाँ, अब खेला होगा। तो अब चलते हैं फिर से एक बार दुर्गापुर धमाका बिग बैश लीग के इस मैच में। इस मुकाबले में मुखर्जी 11 ने पहले बल्लेबाजी की। बल्लेबाजी करते हुए 61 रन उन्होंने बनाए। 62 रनों की चुनौती रखी है JBA ब्रदर्स कोलकाता के सामने। आज के दिन का ये पहला मुकाबला, दूसरा दिन ग्रुप बी के मैचेस। इसके बाद शाम में ठीक 4 बजे से आपके सामने मैच होंगे ग्रुप सी के। JK मेदिनीपुर वर्सेस क्लब इंदिरा मां छिन्नामस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल वर्सेस RKR ब्रदर्स। ये 4 टीमें आज शाम में यहाँ पर दुर्गापुर धमाका बिग बैश लीग में खेलते नजर आएगी। आज सुबह के सत्र में ग्रुप बी से मुखर्जी 11 वर्सेस JBA ब्रदर्स कोलकाता, ये पहला मुकाबला। इसके बाद सेकंड मैच होगा एंजल कोलकाता वर्सेस शेरे बांग्ला सौम्या 11 SCA के बीच में। ये 4 टीमें ग्रुप बी से यहाँ पर खेलती नजर आएगी। अंपायर सिग्नल, मैच स्टार्ट। 62 रन बनाने हैं जीत के लिए। प्रारंभिक जोड़ी राज पासवान, उनके साथ एजाज कुरैशी। ये बड़े खिलाड़ी है राज पासवान, हमेशा से मुंबई में भी काफी बेहतरीन इनिंग खेली है राज पासवान ने। अपने इसी इलाके से बिलोंग करते वेस्ट बंगाल के राज पासवान नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर महाराष्ट्र पुणे इंदापुर के बल्लेबाज एजाज कुरैशी। पहले ओवर में गेंदबाज सतीश गेंदबाजी करेंगे मुखर्जी 11 की ओर से। पावर प्ले का ये पहला ओवर। शॉट थर्ड मैन, गली पॉइंट, कवर पॉइंट एंड शॉट कवर। मिड ऑफ दायरे के अंदर इस बार फुलर लेन की इस गेंद को खदेड़ दिया ऑन साइड की तरफ। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, खाता खुलता हुआ बल्लेबाज राज पासवान का रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 1। बिल्कुल, अगर कुणाल सर देखा जाए तो कल जब पहले इनिंग चल रहा था, दिन का पहला मैच चल रहा था, तो वहाँ पे पिरामीटर फ्रेंड्स JBL कांद्रा की टीम 67 रन बनाए थे। तो कहीं ना कहीं दिन के मुकाबले में वो आपको 50 के ऊपर रन देखने पड़ेंगे, और यहाँ पे स्कोर बोर्ड पे 61 लगे हैं, 62 टारगेट है, तो अच्छा स्कोर है। जी हाँ, अच्छा स्कोर यहाँ पर मैं तो कहूँगा। और इसी के साथ हवा चलती हुई, इस हवा के फ्लो के साथ बल्लेबाजी यहाँ पर करनी होगी, मेरिट पर खेलना होगा। इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया, गेंद ने शॉर्ट स्क्वायर की तरफ ये गेंद गई थी। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, बल्लेबाज एजाज कुरैशी का खाता खुलता हुआ। रन संख्या 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 2 रन, टीम JBA ब्रदर्स कोलकाता। बहुत मजा आएगा इस मैच में। ये लक्ष्य जो है वो 62 है, और इतना आसान होगा नहीं चेस करना, और इतना आसान होगा भी नहीं डिफेंड करना, क्योंकि दोनों टीमों में एक से एक दिग्गज सितारे। जब धमाका बिग बैश हो तो धमाका तो होना बनता है, और धमाका आज देखा अपने गेंदबाज विजय गढ़वाली का। और हर एक नए दिन, हर एक मैच में एक एक धमाका तो आपको कम से कम जरूर मिलेगा। ये लीजिए, आ गया धमाका, लेकिन इस बार वहां पर खिलाड़ी थे, उनके सर के ऊपर से गेंद सीधी चली गई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। राज पासवान करते हुए इस दुर्गापुर धमाका बिग बैश में सिक्सर के साथ धमाका।
ये देखिए कुणाल सर, यहाँ पे जिक्र हुआ और जैसे ही जिक्र हुआ है धमाका हुआ है और धमाका बिग बैश सुपर 6 आया है। इस बार फ्लाई स्लिप में गेंद हवा में थी, बल्ले का ऊपरी सिरा लेकर सीधा फ्लाई स्लिप के हाथों में कैद होती हुई गेंद। राज पासवान को अब जाना होगा सीधे डगआउट की ओर। पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ टीम जेवीए ब्रदर्स कोलकाता का ये बड़ा झटका। राज पासवान बैक टू द पेविलियन। एक छक्का आया था मुन्ना, लेकिन यहां पर गलती कर बैठे। आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास था। बल्ले का सिरा लेकर गेंद फ्लाई स्लिप में फ्लाई होती हुई कैद हुई हाथों में वहां के खिलाड़ी के। और यहां पर पहली विकेट मिलती हुई सतीश को। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 8। राज पासवान चले गए अब डगआउट की ओर। नए बल्लेबाज शाहिद शेख बल्लेबाजी करेंगे राज पासवान की जगह पर। बिल्कुल राइट हैंड के बल्लेबाज का विकेट गिरा है, तो यहाँ पे राइट हैंड के बल्लेबाज आए हैं मैदान के बीच। दो कॉम्बिनेशन जो है वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का है। तो ये देखिए पहला वो इससे पहला वाला जो बॉल था वो छक्का लगा था, उसके बाद अच्छा वापसी किया गेंदबाज सतीश। और इसे कहते हैं एक टेढ़ी एक मेढ़ी। यही क्रिकेट है, कब किस करवट जाएगा कोई पता नहीं चलता है। जैसे कि आपने पहले इनिंग में देखा, पहले 4 में 49, फिर उसके बाद विजय गढ़वाली आए गेंदबाजी करने के लिए, मोमेंटम को ब्रेक दिया। और ये इस मुकाबले में चलता रहेगा। कभी मोमेंटम शिफ्ट होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम की तरफ, कभी गेंदबाजी करने वाली टीम की तरफ। इस बार स्क्वायर ड्राइव करने का प्रयास, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट यहां पर पाए गए बल्लेबाज शाहिद। गोल्डन डक का शिकार, शून्य का चश्मा पहनकर अब डगआउट में जाएंगे शाहिद। ये दूसरी सफलता मिलती हुई गेंदबाज सतीश को। यही बात हमने छेड़ी थी मुन्ना, यहां पर स्क्वायर ड्राइव करने का प्रयास था बल्लेबाज शाहिद के बल्ले से। सीधी गेंद गई, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट वहां पर पाए गए शाहिद। और ये दूसरा झटका लगता हुआ जेवीए ब्रदर्स कोलकाता को। वार हुआ, एक छक्का आया, उसके बाद अब पलटवार करते हुए गेंदबाज सतीश। और बिल्कुल देखिए यहाँ पे 2 विकेट मिले हैं, बहुत बड़ा विकेट अपने नाम किया है सतीश। शाहिद शेख को इस वक्त पवेलियन का रास्ता दिखाया है। लेकिन अब मैदान पे देखिए एक और अच्छे बल्लेबाज आकाश ताड़ेकर, यानी कि सितारों से सजी हुई टीम है। तो आपने सही एक बात कहा था कि ये मैच में आपको उतार चढ़ाव दिखेगा। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करते नजर आएंगे आकाश तारेकर। ये भी हमारे महाराष्ट्र के बाइकर मैन के तौर पर जाने जाते, जो पनवेल से पारगांव से बिलोंग करते। 19 बाइक जीत चुके हैं ऐसे बल्लेबाज आकाश तारेकर। ऑन हैट्रिक गेंद करेंगे अब सतीश पहले ओवर में। अब तक इस प्रतियोगिता में 2 हैट्रिक हो चुकी है दुर्गापुर धमाका बिग बैश में। तो क्या ये तीसरी हैट्रिक होगी? कल के रात के खेल में 2 हैट्रिक हमने देखी थी। आज सुबह के मुकाबले में ग्रुप बी में क्या ये तीसरी हैट्रिक होगी? पटकी हुई गेंद थी, हाफ आर्म जैप कर दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। वहां पर खिलाड़ी काफी तेजी से गए, बॉल को रोका। इसी के साथ 2 रनों के साथ खाता खुलता हुआ। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 1 ओवर के समाप्ति के बाद 10 रन टीम जेवीए ब्रदर्स कोलकाता। एक पॉजिटिव इंटेंट यहां पर दिखाया बल्लेबाज आकाश तारेकर ने। रनों की तलाश यहां पर नजर आती हुई। पहले ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 10, 2 विकेट के नुकसान पर टीम जेवीए ब्रदर्स कोलकाता। डीजे ने दुर्गापुर धमाका बिग बैश आप देख रहे हो।
जो ऑर्गेनाइज किया है दुर्गापुर क्लब समन्वय ने, और ये प्रेजेंट किया आपके सामने। इस लीग के डायरेक्टर है हेमंत बनियाल एंड तारिफ सैयद। तो पहला ओवर यहां पर समाप्त। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 10 रन, 62 रनों की चुनौती थी यहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम जेवीए ब्रदर्स कोलकाता के सामने। 10 रन बन चुके हैं, यहां से 52 रन बनाने हैं जीत के लिए। गेंदे शेष होगी आपके सामने 30 गेंदे 52 रन। सेकेंड ओवर में फार एंड से गेंदबाज दीपक, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद फुलर लेन की थी, यॉर्कर लेन पर चॉप करने का प्रयास, लेकिन सीधे बल्ले से इस बार खेल दिया इस गेंद को। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत दीपक द्वारा। और बिल्कुल अगर कुणाल सर देखी जाए तो पहले ओवर में जो रन चाहिए थे वो रन बने। 10 रन प्रति ओवर लगभग यहाँ से रन बनाने, और पहले ओवर से 10 रन आए। हालांकि 2 विकेट जरूर प्राप्त किए सतीश, लेकिन रन कहीं से छोड़े नहीं है। इस बार बल्ले का ऊपरी सिरा, और यहां पर विकेट मिलता हुआ गेंदबाज दीपक को। ये दीपक जलेगा आज, गेंदबाजी में अच्छी गेंदबाजी करेगा, और यहां पर पहला विकेट उनके खाते में इस ओवर से। तो ये तीसरा झटका लगता हुआ जेवीए ब्रदर्स कोलकाता को। महज रन बने हैं स्कोरबोर्ड पर 10। तो यहाँ पे क्या शानदार विकेट निकाला है। पहले बॉल से एक सिंगल आया, पहले बॉल से बिंदी गेंद आई, फिर उसके बाद विकेट निकाला। तो यहाँ पे विकेट लगातार गंवा रहे। विकेट थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, विकेट को यहाँ पे बचाना होगा, रन भी बनाने हैं, तो सभी कुछ करना है बल्लेबाज को। तो यहाँ पे एक और विकेट गंवाया। वही अगर दूसरे छोर से बात की जाए अगर मुखर्जी 11 की, तो उनके जो गेंदबाजी लाइनअप है वो लगातार विकेट चटका रहा है, और ये जो विकेट है वो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को प्रेशर में डालेगा। अब विकेट बचाना होगा, पार्टनरशिप बिल्ट यहाँ पर होनी जरूरी होगी टीम जेवीए ब्रदर्स कोलकाता के लिहाज से। अगर देखा जाए तो एक बड़ा टारगेट उनके सामने रखा है टीम मुखर्जी 11 ने बल्लेबाजी करते हुए। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 10 रन, 3 विकेट खो चुकी है टीम जेवीए ब्रदर्स कोलकाता। नए बल्लेबाज रोहित सिंह, लेफ्ट हैंडेड बैटर रोहित सिंह के साथ राइट हैंडेड बैटर आकाश सारेकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ। ये चले दीपक, फुलर लेन की इस गेंद को सीधा खेल दिया सिर के ऊपर से गेंदबाज के। यहां पर सिंगल बटोरा बल्लेबाज रोहित सिंह का खाता खुलता हुआ। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 11 रन 3 विकेट। यहाँ पे सिंगल मिला है, और सिंगल के साथ खाता खोले हैं बल्लेबाज रोहित, और इस 1 रन की मदद से देखिए टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। जेवीए ब्रदर्स कोलकाता का 11-3 विकेट के नुकसान पे इस ओवर से 1 रन आए हैं। अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अटैकिंग गेंदबाजी हो रही है, लगातार विकेट की तलाश में जा रहे हैं। अब राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे एक एंगल के तहत, और इस बार ये अच्छा स्क्वेयर ड्राइव गली और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से खेल दिया इस गेंद को। गेंद जाती हुई डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए दुर्गापुर बिग बैश 4 रन पर लगाया बल्लेबाज आकाश सारेकर। क्या टेलीकास्ट और क्या एक्सप्रेशन यहां पर दिखाए गए। इस बार फिर से वही प्रयास, लेकिन इस बार नहीं गलती होगी। और ये देखिए विकेट मिलते ही सेलिब्रेशन शुरू हुआ। वहां पर खिलाड़ी थे गेंदबाज दीपक, और आकाश सारेकर का विकेट उनके खाते में। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 15, 4 विकेट खो दिए बल्लेबाजी करने वाली टीम जेवीए ब्रदर्स कोलकाता ने। थैंक यू। ये दृश्य काफी अच्छे लगे मुझे, जब आपके सामने कोई अच्छा खिलाड़ी एक चौका बटोरता है, उसके बाद आप विकेट लेते हो, तो सेलिब्रेशन तो बनता है बॉस। ये बढ़िया सेलिब्रेशन था दीपक द्वारा जब विकेट मिला उनके खाते में आकाश सारेकर का। और दिन में तारे दिखाया आकाश सारेकर को गेंदबाज दीपक ने। मैं पहले कहा था कि ये दीपक जलेगा, आज गेंदबाजी में कुछ करके दिखाएगा। इस ओवर का ये दूसरा विकेट उनके खाते में, 5 रन 2 विकेट उनके खाते में, और बेहतरीन बल्लेबाज को आउट किया है जो हमेशा से रन की तलाश में नजर आता है। ऐसे बल्लेबाज आकाश सारेकर खुद के लिए रूम बनाकर खेलने का प्रयास था थ्रू दी कवर्स, लेकिन इस बार बल्ले का सिरा लेकर गेंद चली गई थी
शॉट बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, वहां पर खिलाड़ी ने क्या बेहतरीन कैच लपका आकाश तारेकर का। 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर जेवीए ब्रदर्स कोलकाता ये आखिरी गेंद इस ओवर की फेस करेंगे सोनू दास। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से शॉर्ट गेंद थी, स्क्वायर कट करने का प्रयास, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। दूसरा ओवर समाप्त, जेवीए ब्रदर्स कोलकाता 15 पर 4। पंद्रह पे 4, 15 लॉस ऑफ 4 आफ्टर 2 ओवर। जेबीए ब्रदर्स कोलकाता। कुणाल सर, अगर पिछला विकेट पे अगर आप नज़र डालेंगे एक बार, तो पिछला विकेट आकाश तारेकर का, उनका चलना बहुत ज़रूरी था इस मैच में, क्योंकि ये जो साझेदारी होती है आकाश तारेकर और साथ में बल्लेबाज रोहित सिंह के, तो वो बहुत अहम साझेदारी था, लेकिन वो साझेदारी तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अब सोचना होगा जेबीए ब्रदर्स कोलकाता को कि आप आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं। शुरुआत खराब हुई है, लेकिन यहाँ से वापसी करना होगा। ये देखिए 24 गेंदे 47 रन, और अमूमन ये रन बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस वक्त मुश्किल में है, लेकिन ये रन बनाने होंगे। अगर ग्रुप बी से अगर पहला जीत का स्वाद चखना है तो 24 में 47 करने होंगे। जी बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी है। 24 गेंदे 47 रन यहाँ पर बनाने जीत के लिए अब जेवीए ब्रदर्स कोलकाता को पार्टनरशिप, मैंने पहले कहा था आपको यहाँ पर पार्टनरशिप बनानी होगी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक चौका बटोरा था बल्लेबाज आकाश तारेकर ने, लेकिन उसके बाद गलत स्ट्रोक का चयन किया। फिर से एक बार कवर्स में खेलने का प्रयास था, बल्ले का सीरा लिया और वो वहां पर आउट होकर डगआउट की ओर चले गए। अब यहाँ पर रोहित सिंह और सोनू दास क्या अच्छा खेल पाएंगे? उनके सामने गेंदबाज सतीश, पहले ओवर में 2 विकेट मिले थे। सतीश इनको जो पावर प्ले में उन्होंने ओवर किया था, उस ओवर में एक छक्का आया था बल्लेबाज राज पासवान द्वारा, लेकिन वो भी अब डगआउट में। ये चले गेंदबाज सतीश फुलरलिन की इस गेंद को ऑन साइड में खेल दिया, सिंगल बटोरा, दूसरे की कोई तलाश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज रोहित सिंह ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 16 रन। बिल्कुल, वहाँ पे फील्डर देखे तो रोहित चंडीगढ़ काफ़ी तेज़ गए थे। उन्हें पता था कि अगर ज़्यादा तेज़ हम नहीं पहुँचेंगे तो फिर ये सिंगल डबल में कन्वर्ट होगा, और इसी के लिए वो काफ़ी तेज़ गए थे और सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को। तो यहाँ पे फील्डरों का साथ होना भी बहुत ज़रूरी होता है अच्छी गेंदबाजी के साथ, और यहाँ पे वही हो रहा है, अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है, फील्डरों का साथ भी मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी इस बात से। जब आप बाउंड्री लाइन पर तैनात हो तो आपको वहां से स्टार्ट लेना जरूरी होता है। जब पावर प्ले के ओवर समाप्त होते तो हल्के हाथों से जब खेलते बल्लेबाज तो वहां पर चांस बनता है सेकंड रन का, लेकिन ये चांस को थोड़ा सा पीछे रखा बल्लेबाज ने। महज 1 रन यहाँ से बटोरा, काफी तेजी से गए थे वहां पर खिलाड़ी रोहित चंडीगढ़िया। गेंद के ऊपर प्रेशर बनाने का प्रयास था बल्लेबाज द्वारा खिलाड़ियों के ऊपर। इस बार अच्छा स्ट्रोक, कैप में जाता हुआ 2 खिलाड़ी उसके पीछे, 1 रन मुकम्मल होता हुआ दूसरे की तलाश, क्या दूसरा होगा पूरा? जी हाँ, यहाँ पर वहां के खिलाड़ी थोड़े से फंबल्ड हुए और उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज दोनों के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 18 रन, सोनू दास के खाते में ये 2 रन। टॉस के लिए आपको आना है एंजल कोलकाता और उनके खिलाफ खेलेगी टीम शेर बंगाल सौम्या 11 SCA। दोनों टीम आपकी प्लेइंग 11 लिस्ट आपको अपडेट करना है। एंजल कोलकाता, शेर बंगाल, सौम्या 11 SCA। इसी बीच गेंदबाजी करने के लिए फिर से सतीश तैयार होते हुए। सतीश राउंड विकेट से पटकी हुई गेंद थी, इस बार बल्ले का ऊपरी सिरा लेकर गेंद मिड विकेट के ऊपर क्या जाएगी? जी नहीं, ये कैच ऑफ द डे हो जाएगा। खुद को वहां पर थोड़ा सा बैलेंस करते हुए क्या स्ट्रेच किया वहां के खिलाड़ी ने। वहां पर थे साहिल और साहिल ने लपक लिया सोनू दास के इस कैच को। ये कैच ऑफ द डे, कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकता है। कहते हैं ना, उड़ते हुए बाज को भी कसकर जकड़ लेता है। ये साहिल दुनिया का हर कैच पकड़ लेता है। दुर्गापुर धमाका बिग बैश में एक और धमाका, कमाल का ये कैच। क्या कैच वहां पर लपका है। साहिल ने डीप मिड विकेट की तरफ सोनू दास का, माना कि ओरों के मुकाबले कुछ ज्यादा नहीं पाया मैंने
खुद गिरता रहा, संभलता रहा, पर किसी को गिराया नहीं मैंने। क्या कैच था इस बार वहां के खिलाड़ी साहिल द्वारा। और बिल्कुल आखिरी समय तक बॉडी बैलेंस को बनाए रखा, और आसान नहीं होता है कि बिल्कुल कुछ इंचों का फासला था वो बाउंड्री लाइन से, और वहाँ पे बॉडी बैलेंस को बनाए रखा, कैच को मुकम्मल किया। और यही होता है सर, अभी हम लोग जिक्र ही कर रहे थे कि गेंदबाजी के साथ साथ फील्डर का साथ होना बहुत ज़रूरी है, और वो सभी एफर्ट दे रहे हैं। अगर आप बात करें मुखर्जी 11 के पूरी टीम के बारे में, तो पहले बल्लेबाजी अच्छा किए, फिर अब गेंदबाजी अच्छा कर रहे हैं, और गेंदबाजों के साथ साथ क्षेत्ररक्षण भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और यही कारण है कि यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल में JBA ब्रदर्स कोलकाता की टीम। विकेट नंबर 5, 18 पे 5 विकेट गंवा दिए हैं। तीसरा ओवर अभी प्रगतिशील है। तो आज पहले मैच में, दिन के पहले मैच में, ग्रुप बी का पहला मैच में, और धमाका बिग बैश दुर्गापुर के दूसरे दिन में आज विकेट काफ़ी ज़्यादा आए हैं। 5 विकेट खो दिए बल्लेबाजी करने वाली टीम JBA ब्रदर्स कोलकाता ने। अच्छी गेंदबाजी सतीश द्वारा, टिप्पा खाकर गेंद थोड़ी सी नीची रही, सीधे विकेट कीपर के हाथ में। काफी तेज यहां पर गेंदबाजी करते हुए सतीश एंगल के तहत थोड़ा सा गेंद को बाहर लेके गए थे। लेग कटर का काफी अच्छा इस्तेमाल उनके गेंदबाजी में नजर आया मुन्ना। और बिल्कुल गेंदबाजी अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। कोई शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद भी दे रहे हैं। पिछला अगर विकेट की बात की जाए तो वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाले थे, वो ऑफ स्टंप की बाहर से घसीट के मारने की प्रयास थी, विकेट गंवाया था। फिर से सतीश के सामने होंगे नए बल्लेबाज। खूबसूरत ये शॉट है, कनेक्शन अच्छा है, और ये बहुत दूर जाके गिरेगी। ये नितिन माटुंगे भाई, ये नहीं रुकने वाले। जब बल्लेबाजी करते बिल्कुल इसी अंदाज में गेंद को फेंक देते हैं बाउंड्री लाइन के बाहर कोल्हापुर के खिलाड़ी। और इस बार कोल्हापुरी तड़का देते हुए गेंद पर उछाल दिया इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बेहतरीन टाइमिंग के साथ ये पिंच हिटर की भूमिका में आते, छा जाते, और छा गए गुरु। नितिन माटुंगे के बल्ले से ये पहला छक्का। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 24, लॉस ऑफ 5 विकेट टीम JBA ब्रदर्स कोलकाता। अब रंग में आएंगे ये बल्लेबाज नितिन माटुंगे। अगर ये बल्लेबाज चले 6 ओवर तक, आखिरी गेंद तक, तो ये मुकाबला थोड़ा सा आसान हो सकता है JBA ब्रदर्स कोलकाता के लिए। अब सतीश राउंड विकेट से, फुल टॉस गेंद थी, इसे खेल दिया स्वीपर कवर की तरफ, सिंगल तो बटोरा। अब स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज नितिन माटुंगे। ओवर नंबर 3 समाप्त। 3 ओवरों के समाप्ति के बाद JBA ब्रदर्स कोलकाता रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 25, लॉस ऑफ 5 विकेट। 25 पे 5, 3 ओवर के बाद JBA ब्रदर्स कोलकाता। अगर कुणाल सर अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से पिछला ओवर घटा है, तो कहीं ना कहीं एक छक्का आया। वो छक्का जो आया नितिन माटुंगे के बल्ले से, तो ऐसा लग रहा था केरन पोलार्ड की याद आई। काफ़ी तेज शॉर्ट ओवर पिच बॉल था, लंबा छक्का आया है। जिस तरीके से वो छक्के लगा, यहाँ से अभी उम्मीदें बरकरार है। अब यहाँ से जीत के लिए देखिए 18 गेंदे बचे हैं, और 18 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता है, यानी कि 12 रन प्रति ओवर लगभग रन चाहिए। इस बार विकेटों को थोड़ा सा चूम लिया था सर, उसके ऊपर रख दिया था गेंदबाज सतीश ने, क्योंकि एक लंबा छक्का उनके ऊपर जड़ा था। क्या दृश्य थे वो आपके स्क्रीन पर जो नजर आए 70 स्पोर्ट्स द्वारा। तो अब आने वाली गेंदें होगी 18 गेंदों में 37 रन जीत के लिए बनाने होंगे टीम JBA ब्रदर्स कोलकाता को। फार एंड से अब गेंदबाजी करेंगे साहिल, जिन्होंने एक बेहतरीन कैच लपका मिड विकेट की जानिब। वो गेंदबाज साहिल अब गेंदबाजी करते नजर आएंगे। उनके सामने खिलाड़ी होंगे एक छक्का लगाने वाले एक बड़े खिलाड़ी नितिन माटुंगे। और बिल्कुल, तो ये अच्छा कॉन्टेस्ट होगा कुणाल सर, क्योंकि एक कैच अच्छा लपके है तो कहीं ना कहीं दिन अच्छा, और दूसरी तरफ से एक छक्के लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं नितिन माटुंगे। तो ये कॉन्टेस्ट गेंदबाजी और बल्लेबाजी के बीच अच्छा जमेगा। जी हाँ, एक अच्छा कॉन्टेस्ट होना जरूरी भी होगा, क्योंकि एक छक्का लगा चुके हैं पिछली ओवर में बल्लेबाज नितिन माटुंगे। 3 गेंदें 7 रनों पर वो खेलते हुए। उनके साथी खिलाड़ी 2 गेंदों में 2 रन। रोहित सिंह रन संख्या 25, 5 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदें 37 रन। इस बार बल्ले को ऑन साइड में इस बल्ले का फेस को क्लोज किया था, लेकिन गेंद ऊपरी सिरा लेकर गई शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज नितिन माटुंगे ने। रन संख्या 26। यहाँ पे अता पता नहीं था बल्लेबाज के पास, तो पहली गेंद पे हावी दिखे हैं गेंदबाज साहिल।
नितिन माटुंगा के ऊपर ये देखिए किस तरीके से ऑन साइड पे खेलने की प्रयास थी, बल्ले का टॉप एज लगा, कुछ देर के लिए हवा में लहराई गेंद, मगर पीछे फील्डर काफ़ी दूर। लेकिन फील्डिंग देखिए काफ़ी अच्छी फील्डिंग हुई है, जिस तरीके से पाँव फिसला उसके बाद भी बॉल को पकड़ा, वहाँ से थ्रो किया। अमूमन आप देखते हैं कि इस तरीके से अगर फील्डर गिरते हैं तो वो सिंगल डबल में कन्वर्ट होता है, लेकिन आखिरी समय तक अच्छा फील्डिंग किया। फील्डिंग अच्छी हो रही है, बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, इस मुकाबले में गेंदबाजी अच्छी हुई, क्योंकि पहले इनिंग में विजय गढ़वाली ने 2 ओवर 11 रन 5 विकेट उनके खाते में थे, एक फाइपर जोड़ दिया आपके नाम के साथ। अच्छी गेंदबाजी हुई, ये एक्स्ट्रा रन यहां से जुड़ता हुआ खाते में, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 27 लॉस ऑफ 5 विकेट। रोहित सिंह अब स्ट्राइकिंग एंड पर, इस बार ऑन साइड पर ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी थे, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज रोहित सिंह ने। 28 रन, सिंगल डबल से यहां पर कुछ नहीं होगा मुन्ना, आपको एक बड़ा हिट लगाना जरूरी होगा इस ओवर में। शेरे बेंगलेर कैप्टन दीप टसे आसबे, मूल मंचे टस होबे, मूल मंचे टस होबे, दीप टसे एसो। एक पुटू चले एसेছে অলরেডি, एंजल कोलकातार कैप्टन वेट करছে। फिर से एक बार राउंड विकेट से, इस बार थोड़ा सा पीछे हटकर इस गेंद को खेल दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, नितिन माटुंगे के बल्ले से ये आता हुआ दुर्गापुर बिग बैश 4 रन। हेलो, अब देखिए 15 गेंदों में यहाँ से अब 30 रन चाहिए। ये शॉट देखिए थोड़ा सा सफल करके गए, ऑफ स्टॉम्प पे चढ़े, वहां से ऑन साइड पे खेला, चौका बनाया, तो यहाँ से मैच खुलेगा और बहुत कुछ ट्विस्ट आएगा। अच्छा चौका बटोरा बल्लेबाज नितिन माटुंगे ने, ट्विस्ट आता हुआ। इस बार बल्ले का नहीं सिरा नहीं लिया, शायद इसी के चलते अपील यहाँ पर चलती हुई, लेकिन एक स्माइल यहाँ पर नजर आई नितिन माटुंगे के चेहरे पे, क्योंकि एक चौका बटोरा था लॉन्ग लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से, उसके बाद एक अच्छा लेग कटर यहाँ पर डिलीवर्ड किया साहिल शिव ने। अच्छा कमबैक किया इस गेंद पर साहिल शिव ने, लेकिन क्या तेज हवाएं बहती हुई इस शहीद भगत सिंह स्टेडियम पर। और बिल्कुल जिस तरीके से विपरीत हवा चल रही है, इस एंड से जब बल्लेबाजी होगी तो थोड़ा सा मुश्किल होगा बल्लेबाज को, क्योंकि वो ऑन साइड पे ज़्यादा बड़ा शॉट लगाने में जाएंगे तो कैचे की संभावनाएं बढ़ेगी। और यहाँ पे देखिए हर एक ओवर में आपको डॉट गेंद नहीं, आप चाहेंगे कि सिंगल डबल हो, और हर एक ओवर में 1-2 बाउंड्री आप तलाशेंगे, तब यहाँ से मैच बन सकता है। फिर से एक बार राउंड विकेट, स्विच हिट करने का प्रयास, ऊपरी सिरा, गेंद कवर पॉइंट पर हवा में, और यहाँ पर आउट। बल्लेबाज नितिन माटुंगे गलती कर बैठे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था तेज हवाएं बहती हुई, उसी हवा के साथ खेलने का प्रयास था, इसी के लिए बल्ले को थोड़ा सा उल्टा किया, स्विच हिट का प्रयास, ऊपरी सिरा लेकर शॉर्ट कवर पॉइंट पर पाए गए इस बार बल्लेबाज नितिन माटुंगे। तो এই মুহূর্তে আমরা পেয়ে গেছি দুই অধিনায়ককে। টস হবে পরের ম্যাচের, একদিকে রয়েছে অ্যাঞ্জেল কলকাতা আর অন্যদিকে রয়েছে শেরে বেঙ্গল সৌম্য একাদশ সোনামুখী ক্রিকেট একাডেমি। তো একদিকে পুটু সাহা, একদিকে রয়েছে দীপ পল। ক্যামেরা পার্সন একজন প্লিজ একবার চলে আসবেন, একজন ক্যামেরা পার্সন চলে আসবেন, টসের জন্য টস হবে, তো টস होगा, एक कैमरा पर्सन प्लीज आप चले आइए। टॉस स्टेज होवे, खेला माटे होवे, 32 पर 6 विकेट, 32 लॉस ऑफ 6 विकेट। जब पारी का ये चलता हुआ ओवर नंबर 4, विजय पावले नए बल्लेबाज, गेंदबाजी में काफी महंगे साबित हुए थे विजय पावले, अब बल्लेबाजी करनी होगी। एक अच्छे ऑलराउंडर है टीम एंजल कोलकाता के विजय पावले। आते ही स्विच हिट का प्रयास, पहले ही बल्ले को यहां पर उल्टा किया था, लेकिन अंपायर का कहना ये गेंद वाइड होगी, एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में। और गेंदबाजी करने वाली टीम ने शायद डीआरएस की मांग यहां पर की है, जी नहीं, कुछ रूल्स यहां पर समझाते हुए इस लीग के डायरेक्टर हेमंत बनियाल, जिन्होंने इस लीग को प्रेजेंट किया आपके सामने, ऑर्गेनाइज टीम दुर्गापुर क्लब समन्वय, ये प्रेजेंटेड आपके सामने प्रेजेंट किया है हेमंत बनियाल ने दुर्गापुर धमाका बिग बैश को।
एक अलग सोच है हेमंत बनियाल और तारिफ सैयद की, अलग अलग राज्यों में इस टूर्नामेंट को लेकर गए हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में क्या डीआरएस की मांग अब करेंगे विकेट कीपर कप्तान टीम मुखर्जी 11 के। अंपायर ने अपील को खारिज किया यहां पर, और जी हां, डीआरएस ले चुके हैं। डिसीजन रिव्यू सिस्टम एलबीडब्ल्यू के लिए, पगबादा के लिए इस बार ये डीआरएस का इस्तेमाल होता हुआ। मुन्ना, हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी आपके पास है, आपको कहीं से संकोच है तो आप डीआरएस की मांग कर सकते हैं। तो यहाँ पे डीआरएस की मांग की गई है, तो क्या बल्लेबाज यहाँ पे आउट होंगे या नॉट आउट, ये फैसला आएगा। अभी निगाहें रहेगी स्क्रीन पे, डिसीजन इस वक्त पेंडिंग में है। So we are here for the toss of the second match, Putu and Deep. তো অ্যাঞ্জেল কলকাতার কল থাকবে এখানে পুটুর তরফ থেকে। টেল কল করা হয়েছে এবং হেড, দ্যাট মিন্স হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল নট আউট। সৌম্য একাদশ, টসে জিতেছে দীপ পল। ব্যাটিং ফার্স্ট। তো প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত দীপ। কেমন লাগছে এ মাঠ, কেমন লাগছে টোটাল ডেকোরেশন, আর কি মনে হচ্ছে এই মাঠ দেখে? ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টুর্নামেন্ট অফ বেঙ্গল। তো ভালো তো লাগছে, এবার দেখা যাক মাঠে কতটা আমরা ভালো পারফরমেন্স করতে পারি সেটার উপর। পিচ থেকে কত রান দেখতে পাচ্ছ এখানে? কালকের থেকে ম্যাচ হচ্ছে 50-60 রান পার স্কোর আছে, তো আমরা চেষ্টা করব 60 প্লাস করা। ওকে, শুভেচ্ছা রইল। পুটু, টস জিতলে সিদ্ধান্ত কি হতো? ব্যাটিংয়ে করতাম, তো বড় মাঠ, বেশি রান চাপিয়ে দিলে অসুবিধা হবে। একদমই বড় মাঠ এবং এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন বল, ফুল টস বলে খেলা হচ্ছে। যদিও আউট অফ স্টেটে ফুল টস বলের সাথে অভিজ্ঞতা রয়েছে যারা আউট অফ স্টেটে খেলেছে, তাহলেও বড় মাঠ, এত বড় মাঠ এবং তার সাথে ফুল টস বল সব মিলিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে একটা সময় লাগবে। সে কারণেই কি টসে জিতে প্রত্যেক অধিনায়ক এখানে ব্যাটিং এর জন্য যেতে চাইছে? সবাই প্রফেশনাল প্লেয়ার, অ্যাডজাস্ট করতে সময় লাগে ঠিকই, কিন্তু অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। শুভেচ্ছা রইল এবং আমরা সরাসরি এখান থেকে আবারও ফিরবো কমেন্ট্রি বক্সে। थैंक यू सुमंत दा। 4 ओवरों का खेल समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 33 लॉस ऑफ विकेट। 12 गेंदे 29 रन, 12 गेंदों में 29 रन बनाने मुन्ना यहां से बल्लेबाजी करने वाली टीम जेवीए ब्रदर्स कोलकाता को, क्योंकि टारगेट सेट किया था 62 रन 62 रनों का। टीम मुखर्जी 11 ने जेवीए ब्रदर्स कोलकाता के खिलाफ खेलते हुए अब पारी का ये 5वां ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज राजा। बिल्कुल, 12 गेंदों में 29 रन थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, पर ये मुमकिन भी है। 12 गेंदों में 29 बनाने होंगे अगर आपको ग्रुप बी का ये पहला मैच जीतना है, पहला जीत का स्वाद चखना है, तो फिर ये 12 में 29 करने होंगे। थोड़ा सा मुश्किल पर मुमकिन भी है। बट अब अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगा रोहित सिंह को। 3 गेंदों में महज 3 रन बनाकर खेलते हुए। पहली गेंद पटकी हुई थी, इस बार कीपर के हाथों में और अंपायर का सिग्नल आता हुआ ये वाइड गेंद, 1 पर द ओवर, ये वार्निंग आता हुआ गेंदबाज राजा को। तो अब जो 12 में 29 चाहिए, अब यहाँ से 12 में 28 चाहिए, और वो एबिलिटी है। अगर बल्लेबाज रोहित की बात की जाए तो रोहित कई सारे मैच अपने बलबूते पे जिता चुके हैं, तो इनके पास वो क्षमता है, बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी है। दिल्ली धमाका बिग बैश में भी काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा था बल्लेबाज रोहित सिंह का, और उसी प्रदर्शन को यहाँ पर दोहराना होगा। आगे रखा था इस बार गेंद को पिछली गेंद की तुलना में, लेकिन यहाँ पर अपील होती हुई इस अपील को खारिज किया अंपायर जी ने। अंपायर का सिग्नल आता हुआ लेग बाय के तौर पर, एक्स्ट्रा की तौर पर रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 35 रन। बिल्कुल, यहाँ पे जैसे भी रन आने चाहिए, रन चाहिए जेवीए ब्रदर्स कोलकाता को, क्योंकि अब यहाँ से अब जीत के लिए बात की जाए तो 11 गेंदों में अब चाहिए यहाँ से 27। बॉलें बची है 11, गेंदें बची है 11, रन चाहिए 27। थोड़ी सी मुश्किल में है, लेकिन अब स्ट्राइक लेंगे विजय पावले। खाता खोलना बाकी है, लेकिन अब अपनी खाता नहीं, अब टीम की खाता की तरफ देखेंगे कि क्या टीम का खाता खुलेगा। राजा की ये गेंद बहुत ही तेज शॉट, मिड विकेट के जानी, पीछे फील्डर है, और इस बार 1 रन मुकम्मल किया। दूसरा रन के लिए पलटे हैं रोहित, लेकिन सही समय पे वापस गए। दूसरा रन चाहते थे मगर नॉन स्ट्राइक एंड से मना किया साथ ही बल्लेबाज विजय पावले ने, और 1 रन से ही संतुष्ट होते हुए। बाहर की गेंद घसीटा था, ऑन साइड में मिड विकेट पे खेला, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहाँ पे, इसी के लिए तैयार थे वहाँ पे फील्डर। वो
बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये सिंगल डबल में कन्वर्ट हो, लेकिन ये अच्छी संकेत है कि यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए जेवीए ब्रदर्स कोलकाता ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके रोहित स्ट्राइक ले और उनके बल्ले से रन आए, क्योंकि वो उनकी निगाहें भी जम चुकी है मैदान पे और वो सेट हो चुके हैं। सेट तो हो चुके हैं, लेकिन अब बड़े हिट की तलाश जरूर होगी। गेंदबाज राजा ये चले ओवर द विकेट से, इस बार शॉर्ट गेंद को आड़े बल्ले से पुल करने का प्रयास, लेकिन फिर से एक बार गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथ में ये गेंद जाकर रुकी और थोड़े से नाराज यहां पर नजर आए अपने बल्लेबाजी से बल्लेबाज रोहित सिंह। और बिल्कुल कुणाल सर, अगर देखा जाए तो रोहित के लिए जो गेंदें हुई है उनको ऊपर गेंदें डाला नहीं गया, ज़्यादातर उन्हें बाउंसर गेंदें, उछाल गेंदें और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली गई है, कभी तेज गति से कभी धीमी गति से। अगेंस्ट द विंड खेलने का प्रयास इस बार करते हुए बल्लेबाज रोहित सिंह। ये चले फिर से एक बार आगे रखने का प्रयास, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खदेड़ दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ। वहां पर खिलाड़ी महज सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, वहां पर खिलाड़ी थे रोहित चंडीगढ़िया। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 37, लॉस ऑफ 6 विकेट। जबकि पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ ये मुकाबला थोड़ा सा कठिन होता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। और बिल्कुल कठिन तो है, लेकिन यही वो सिचुएशन है, यही वो परिस्थिति है जहां से आप मैच निकालते हैं तो फिर आपकी वो पहचान ज़्यादा बढ़ती है। विजय पावले के लिए फुल टॉस, इस बार स्क्वायर ड्राइव बेहतरीन टच में नजर आते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और देखिए कुणाल सर, यही तो धमाका बिग बैश की खूबसूरती है, आप क्रूसल समय पे कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, कितनी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, फिर आपका भी धमाका होगा, पूरे इंडिया में खिलाड़ियों का धमाका होगा। यही तो हमने कल एक मुकाबले में देखा था, मेडन ओवर आया था, 5वां जो ओवर किया था गेंदबाज नवनीत ने शायद, और उसके बाद आखिरी ओवर में 20 रनों की तलाश थी और बल्लेबाजी में बंटी पटेल ने महज 4 गेंदों में वो 20 रन बना दिए। मैन ऑफ द मैच रहे थे बंटी पटेल। और ये देखिए विजय पावले 1-2 ओवरों में शायद 28 रन खर्चे थे विजय पावले ने, लेकिन अब बल्लेबाजी में रन करने होंगे। इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास, गेंद सीधी जाती हुई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, ये बैक टू बैक चौका आता हुआ, लेकिन ये लेग बाइस की तौर पर, एक्स्ट्रा की तौर पर रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 45। अब 6 गेंदों में 17 रनों की दरकार होगी बल्लेबाजी करने वाली टीम जेवीए ब्रदर्स कोलकाता को। 6 गेंदें 17 रन। और बिल्कुल यहाँ से देखिए पलटवार हुआ है और यहाँ पे जेबीए ब्रदर्स कोलकाता रन जैसे भी आए आने चाहिए, उनको रन चाहिए। अब 6 गेंदे 17 रन। अभी मैंने कहा था कि दैट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मुश्किल है पर मुमकिन भी है। अब 6 में 17। बंगाल में अच्छा खेल किया है जेवीए ब्रदर्स ने, एक लकी टीम मानी जाती है जेवीए ब्रदर्स कोलकाता। तो शायद क्या ये रन डिफेंड कर पाने में यहाँ पर सक्सेसफुल रहेगी टीम मुखर्जी 11, क्योंकि बल्लेबाजी करते समय उन्होंने 61 रन बनाए। और अभी जेवीए ब्रदर्स कोलकाता रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 45, 6 विकेट खो चुके हैं टीम जेवीए ब्रदर्स कोलकाता। तो आने वाली गेंदें शेष होगी, 6 गेंदों में रन बनाने हैं जीत के लिए जेवीए ब्रदर्स कोलकाता को 17। और बिल्कुल कुणाल सर, कल का जो मैच था बिल्कुल कहीं ना कहीं उसी तरह आज दोहराते हुए मैच जो कल मैच था पिरामीटर फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा वर्सेज अनिर्बान इंजीनियरिंग के बीच, कुछ ऐसा ही सिचुएशन चल रहा था, ऐसा ही समय चल रहा था और आखिरी ओवर 20 रन आया था। कमाल का मैच रहा था। तो एक बार फिर से मैच वापस एक और अच्छा मैच होता हुआ। गेंदें बची है 6 और रन चाहिए 17। 6 गेंदें 17 रन। दीपक आखिरी ओवर में गेंदबाजी करते नजर आएंगे। बिल्ली इस नाम से जाने जाते हैं खिलाड़ी। अच्छी गेंदबाजी की थी दीपक ने इससे पहले वाले ओवर में जब विकेट उन्होंने प्राप्त किया था बल्लेबाज आकाश तारेकर का। स्क्वायर ड्राइव करने के प्रयास में बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच में वहां पर पाए गए थे आकाश तारेकर। अब 6 गेंदें 17 रन। आखिरी ओवर में गेंदबाज दीपक, ये दीपक ने अच्छी गेंदबाजी की है। इससे पिछले वाले ओवर में 2 विकेट उनके खाते में, महज 5 रन खर्चे थे उस ओवर में। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, काफी शांत बल्लेबाजी रही है रोहित सिंह द्वारा। 6 गेंदों में महज 4 रन। विजय पावले 4 गेंदें 5 के खाते में। जो डीप कवर पॉइंट में जड़ा था विजय पावले ने लेफ्ट मोर द विकेट से। पहली गेंद फुल टॉस, इस बार सीधा खेल बेटे डीप कवर पर, वहां पर सिंगल के साथ दूसरे की तलाश यहां पर होती हुई रोहित सिंह द्वारा, और यहां पर दूसरा रन ले लिया दोनों बल्लेबाज ने। गलती हुई दीपक से, गेंद उनके हाथ से छिटकी और यहां पर दौड़ पड़े बल्लेबाज विजय पावले।
और बिल्कुल देखिए, और यहाँ पे जिस तरीके से इस एंड से बल्लेबाजी हो रही है, लेफ्ट हैंड के पास एडवांटेज रहेगा, थोड़ा सा हवा का फायदा मिलेगा, मदद मिलेगा, और चाहते थे कि रोहित स्ट्राइक पे आए, और स्ट्राइक के साथ साथ वो जो एक रनआउट का मौका था वो गंवाया, तो सिंगल डबल में कन्वर्ट हुआ है। अब 5 गेंदे 15 रन, व्हाट अ मैच। ये मैच अच्छा होता हुआ मुन्ना, क्योंकि ये देखिए जैसे ही गेंद हाथ से छिटकी 2 रन यहाँ पर पूरे किए बल्लेबाज विजय पावले ने। इस बार टिप्पा खाकर गेंद थोड़ी सी नीची रही, सिंगल यहाँ पर जुड़ता हुआ खाते में जेवीए ब्रदर्स कोलकाता के। अब दूसरे की तलाश क्या होगी? नहीं, विजय पावले ने कहा नहीं, अब मैं स्ट्राइक लूंगा, बाई का इशारा अंपायर द्वारा। 4 गेंदों में अब चाहिए 14। कहते हैं ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यहाँ पे डू और डाई का मैच, ये बहुत ही कड़क मैच होता हुआ, ये रोमांच बना हुआ, यही तो धमाका बिग बैश की खूबसूरती है। और कुणाल सर, आपने एक बात छेड़ी थी पहले कुछ ही ओवर में कि ये मैच जो होगा वो काफ़ी उतार चढ़ाव का रहेगा। जी हाँ, वही तो देखा है हमने। जब पहली गेंद डिलीवर्ड की, पहले ओवर में कुछ विकेट आए, 2 विकेट आए, एक छक्का आया राज पासवान के बल्ले से, उसके बाद वार हुआ बल्लेबाज आकाश तारेकर द्वारा, उनका विकेट लिया। उसके बाद दीपक आखिरी गेंद बाजी उनकी ओर से यहाँ पर चलती हुई। अब 4 गेंदों में रन बनाने हैं जीत के लिए। 14 रन, 4 गेंदे 14 रन। और बिल्कुल कुणाल सर, अगर बात की जाए तो एक दीपक आसमान में है, चमक रहे हैं, दूसरे दीपक इस दुर्गापुर धमाका बिग बैश के इस मैदान में, शहीद भगत सिंह स्टेडियम में। क्या यहाँ से आज ये दीपक चमकेंगे? 4 गेंदे बाकी है और 4 गेंदों में चाहिए 14 रन जेवीए ब्रदर्स कोलकाता को। विजय पावले और रोहित सिंह इस वक्त मैदान पे है। 4 गेंदों पे 14 रनों की आवश्यकता है। 2 टीमें आमने सामने, मुखर्जी 11 और साथ में है जेवीए ब्रदर्स कोलकाता। 2 टीम आमने सामने है। इस वक्त जेवीए ब्रदर्स को जीत के लिए 14 रनों की दरकार और गेंदें बची है 4। क्या होगा यहाँ पे पढ़ार, क्या होगा पलटवार, क्या होगा ये मैच मजेदार तो हो चुका है। 4 बॉल 14 रन। 4 गेंदों में 5 बनाए विजय पावले। रोहित की बात की जाए तो 8 गेंदों में 6 बनाए। पिछला ओवर जो रहा था वो 12 रन का ओवर रहा था। 12 गेंद में 29 चाहिए थे, पिछला ओवर से आए थे 12 और इस ओवर से 17 चाहिए थे। अभी तक बने हैं 3 रन। तारीफ करने होंगे यहाँ पे दीपक की, जिस तरीके से गेंदबाजी की है। 1.2 ओवर की गेंदबाजी की है और अब तक मात्र 7 रन खर्च किए। पिछला ओवर 2 विकेट आया था, इस ओवर से विकेट नहीं आए हैं, लेकिन ये अहम ओवर है, ये निर्णायक ओवर है। ये तय करेगा कि कौन सी टीम ग्रुप बी से पहला मैच जीतेंगे। 4 गेंदे 14 रन। इस बार दीपक सामने, बल्लेबाज विजय पावले, बल्ले का सीरा, गेंद विकेट कीपर के हाथों में और सेलिब्रेशन टाइम फॉर दीपक। आउट बल्लेबाज विजय पावले। अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं राजेश सोटे और 3 गेंदों में अब चाहिए 14 और नए बल्लेबाज होंगे स्ट्राइक पे। अब नए बल्लेबाज राजेश सोटे बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। गेंदे 3 गेंदों में रन बनाने 14, 2 लंबे छक्के यहां पर लगाने होंगे राजेश सोटे को, लेकिन अगेंस्ट द विंड यहां पर खेलना होगा क्योंकि हवा का फ्लो विपरीत दिशा में यहां पर नजर आता हुआ। दीपक लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से इस बार उड़ा दिया इस गेंद को, लेकिन गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे और आउट होकर डगआउट की ओर बल्लेबाज राजेश सोटे और सेलिब्रेशन यहां पर चलता हुआ गेंदबाज दीपक द्वारा।
थैंक यू डीजे। डीजे भी बिल्कुल सही कहते हुए हल्ला बोल, बिल्कुल उसी अंदाज में गेंदबाजी की है इस मुकाबले में दीपक ने। 4 विकेट उनके खाते में। ये देखिए राजेश सोरटे, गेंद काफी ऊपर गई। मैंने पहले ही कहा था अगेंस्ट द विंड आपको खेलना होगा, हवा की विपरीत दिशा में आपको यहाँ पर स्ट्रोक लगाने होंगे, और उसी के चलते गेंद थोड़ी सी अंदर रुकी और यहाँ पर सीधे डगआउट के और चलते नजर आए बल्लेबाज राजेश सोरटे। 48 पर 8 गेंदें होगी अब, 2 गेंदों में रन बनाने 14। बिल्कुल, अगर कुणाल सर अगर हम लोग थोड़ा समीकरण पे नज़र डालें तो पिछला जो इनिंग जो रहा था मुखर्जी 11, उन्होंने भी 8 विकेट गंवाए थे, यहाँ भी 8 विकेट गिरे, तो आज रन भी बने हैं और विकेट भी ज़्यादा गिरे अगर दूसरे दिन की और पहले मुकाबले की बात की जाए तो। विजय गढ़वाली नए बल्लेबाज, लेकिन इस बार थोड़े से रुके। क्या इस मुकाबले का सेकंड 5 पर आपको नजर आएगा, क्योंकि 4 विकेट ले चुके गेंदबाज दीपक, महज 7 रन उनके सेकंड ओवर के स्पेल से। पहले ओवर में 5 रन, 2 विकेट उनके खाते में। इस ओवर में 2 रन, एक लेग बाइस का रन, और ये चले गेंदबाज। 5वीं विकेट क्या होगी? पटकी हुई गेंद थी, इस बार शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास सीधे विकेट कीपर के हाथ में इस इनिंग की। अब ये आखिरी गेंद पर रन बनाने हैं 14 जीत के लिए जेवीए ब्रदर्स कोलकाता को। थोड़ी सी मुश्किल में इस वक्त जेवीए ब्रदर्स कोलकाता। आखिरी गेंद, क्या 5वां विकेट मिलेगा? इस बार ऑन दी अप खेल दिया इस गेंद को, स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये आता हुआ चौका बल्लेबाज विजय गढ़वाली के बल्ले से। और ये मुकाबला जीती है टीम मुखर्जी 11 9 रनों के साथ। वेल प्लेड टीम मुखर्जी 11। ग्रुप बी से मुखर्जी 11 पहला मैच का जीत का सवा चखा है। तो मुखर्जी 11 पहले टॉस जीता, फिर टॉस जीत के अच्छा फैसला था बल्लेबाजी का, और बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने स्कोर बोर्ड पे 61 बनाए। 62 रन चेस कर रहे थे जेवीए ब्रदर्स कोलकाता, 9 रन दूर रह गए और 9 रनों से इस मुकाबले को जीता है मुखर्जी 11। और अब अगला मैच शेरे बंगाल सौम्या 11 SCA वर्सेज एंजल कोलकाता के बीच। टॉस की प्रक्रिया हो चुकी है, शेरे बंगाल सौम्या 11 SCA, और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। तो यहां पर मैच समाप्त। ये देखिए आपके स्क्रीन पर मैच समरी। दीपू लेफ्टी 16 गेंदे 40 रन, रोहित चंडीगढ़ 6 गेंदे 13 रन, रविंद्र 5 गेंदे 5 रन, साहिल शिव 0, 6 ओवरों में 61 रन बनाए बल्लेबाजी करते हुए, और उसके जवाब में जेवीए